Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear participants, let me inform you that our trainer has joined. So let us start. We are already late for 8 minutes, so no problem. Our trainer is also a very busy person. I'm thankful to him that he has taken out time from his tight schedule for this webinar to this training session. Let me just talk about our training sessions, training programs, which we have started for under the roof of IRC. This is Dr. Nazneen Akhtar, Education Coordinator of IRC, and on behalf of IRC, I welcome you all. Uh, in May, we have started this technical institute with only 1 point program, and the program was to make our youth employable, to increase their employability skills, because the current job market is asking for a complete bundle. In a previously when we did our masters or our graduations, uh, only knowing a particular language, C or Java, was sufficient enough. But in today's job market, you are required to have a complete mindset, a complete package. So at IRC, we have launched in May a career launch pad. We call this as IRC's 360-degree career readiness program. And in this, what we have promised our students is that we will be working not only with technical skills, but we will be working to improve their communication skills, their personality, their mindset, and will be helping them not only with their practical industry relevant skills or hands-on experience or internship opportunities, but will be helping them to build their online presence on platforms like LinkedIn and others as well, which we'll be doing later, and then having this portfolio and resume building. So in this promise, which we committed our student, our first batch has come to an end in different courses. In different courses, our first batches have ended, but we have kept this session open to all students because this is one of the required skill which every student who is seeking a job opportunity, whichever domain they are, they would want to have their online presence felt, and not only felt but noticed, and given an opportunity to work in organizations. And for the same purpose, we have incorporated today, we have roped in today the most experienced person in the industry who has been doing the same thing, mentoring people, build their personal branding, and that is Asim Khazi sir. Speak, आसिम खाजी सर के बारे में बात करना इज लाइक दिया, सूरज को दिया दिखाना. पता नहीं आप लोग जानते हैं नहीं जानते हैं, मे बी शायद बहुत सारे लोग जानते हैं. His name is known to everybody in Aurangabad, especially when it comes to IT industry. Let me tell you, when the people of Aurangabad were struggling even to get job in DBA, that is database administrator, which post now doesn't even exist. ये पोस्ट अब एग्जिस्ट भी नहीं करती है. जब उस वक्त औरंगाबाद के लोग स्ट्रगल कर रहे थे, that time Asim Kazi introduced Hadoop. And let me tell you, he was the uncrowned king of Hadoop. But he has not kept himself limited to Hadoop. He has ventured into the data domain completely. And with that in mind, he has started his own training institute as data binaries. And not only that, it's a training institute, it do handle some serious client projects as well. So he is a person who has been mentoring people, training people to build their personal brand and make their online presence felt and build a career from themselves. Asim Kazi sir, thank you so much for being with us, and thank you for taking out time and guiding our students. We look forward for a very, very insightful session from you, because you have been doing it so well for so many years. We completely bench upon your experience and look forward. Students, you are really, really blessed to have such a experienced trainer taking out time from his busy schedule to train you. I hope you get the best out of today's complete session. Sir, please take beyond from this point. Thank you so much for joining. Yes.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Dr. Nazneen ma'am. That was quite an introduction. So, I welcome you all to this LinkedIn and resume workshop. Let's do our customary audio and video check. Can you please confirm once in the chat window if you are able to hear my voice and also see my screen? Yes, sir, your voice is absolutely clear and we are not able to see your screen. Okay, Maybe I was okay, sharing my screen, that's why I've stopped. Now you can share your screen. okay. Yes, sir, your screen is quite visible. Screen is visible. Great, Yes, sir, great. thank you. Chalo, chalo. Yes. Yes. So before we begin, there are a few things I would like to share with you all. First is keep a notebook and a pen with you. This is going to be uh, a lot of things I'm going to cover regarding resume and LinkedIn. If you take down notes, it will be very helpful for you. So just keep a pen and paper with you. It's going to be a great session for you all. You're going to learn a lot of things. So now, yes. So before we begin, I want to know whether or not you are excited for this session. अब बहुत सारी चीज़ें जो आज तुम लोग को रेज्यूमे और लिंक्डइन के बारे में खास तौर पे फोकस लिंक्डइन के ऊपर रहेगा। तो लिंक्डइन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहेंगी जो यहाँ पर तुम लोग को नई चीज़ें जिससे अपनी प्रोफाइल वगैरह तुम एनहांस कर सकते हैं जॉब्स के लिए या वॉट एवर यू आर सीकिंग थ्रू योर लिंक्डइन प्रोफाइल you are going to get that. So now if you are excited for this session, I want to know that in the chat window. Just type a me in the chat window if you are excited for this session. I just like to know whether or not everyone is on the same page. Yes, type a me in the chat window. कितने लोग हैं? And how many of you are excited for this session? Yes. Type a me in the chat window. Me. Great, great, great. चलो. So yes, तो LinkedIn प्रोफाइल बनाने से पहले फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज यू नीड टू गेट योर रेज्यूमे रेडी। रेज्यूमे के लिए देर आर सर्टन पॉइंट्स that you need to understand. See, LinkedIn तो एक है प्लेटफॉर्म, लेकिन along with LinkedIn you should create your profiles on all the other job portals that are out there. LinkedIn इसमें से क्या है कि थोड़ा सा इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हमको मिलते हैं, बाकी जितने हैं वो प्योरली जॉब पोर्टल्स है, जैसे नौकरी हो गया, टाइम्स जॉब हो गया, मॉन्स्टर हो गया, प्योरली जॉब पोर्टल्स है। बट लिंक्डइन एक प्रोफेशनल सोशल मीडिया है, एंड व्हाई आई से दैट यू विल अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट 1 आवर। तो फर्स्ट स्टेप तो है कि यू गेट योर रेज्यूमे रेडी, कि अपने को क्या स्किल्स तुम लोग को आते हैं वो स्किल्स पूरे रेज्यूमे पे होने चाहिए। अब क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है तो आई वोंट बी टचिंग डाउन अलॉट ऑन द रेज्यूमे बिल्डिंग पार्ट। द रीज़न बीइंग कि आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड 3 वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। यूट्यूब पे मैंने 3 वीडियोज़ डाल रखे हैं, ठीक है। वो वीडियोज़ तुम लोग चेकआउट कर सकते हैं। आई विल गिव यू द लिंक, यू कैन जस्ट गो ऑन यूट्यूब एंड यू कैन सर्च फॉर अवर चैनल डेटा बाइनरीज। And under data binaries, if you go and visit our channel, under here you will find playlists, and under playlist there is a resume playlist, resume building playlist. So there are 3 videos. There are 3 videos under this playlist that are there. First is how to bypass the applicant tracking system. तो ये वीडियो अकेले के ऊपर 50,000 से ज़्यादा व्यूज़ है ऑर्गेनिकली। सो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स कवर्ड। ये टोटल 10 ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का यहाँ पे कंटेंट है। तो बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी देयर इन द पब्लिक डोमेन, तो आई एम नॉट गोइंग टू टच डाउन ऑन दैट, ठीक है। तो यू कैन जस्ट चेकआउट। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई तुम्हारा जो रेज्यूमे है वो ATS फ्रेंडली होना चाहिए। इट शुड बी, जस्ट अ सेकेंड। Yes, so your resume should be ATS friendly. तो ये जो ATS templates है, what I have done is I have already purchased this from LinkedIn. LinkedIn and other companies, they share this ATS templates and I have already bought them for you and I am going to give away that free. लेकिन अगर तुम लोग को ATS templates चाहिए तो you have to stay till the end of the session. तो session के end में I am going to share the details how you can get those ATS templates which can help you bypass your ATS और applicant tracking system. तो अभी रेज्यूमे से हटके अपन सीधा लिंक्डइन के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि बेसिकली अपने को मेन फोकस लिंक्डइन के ऊपर करना है। रेज्यूमे का कंटेंट तो यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ओके।
यस। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तुम्हारा तो लिंक्डइन का अकाउंट बना होना चाहिए। नाउ टेल मी कि कितने लोग हैं जिनका अकाउंट बना हुआ है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी योर अकाउंट क्रिएटेड विथ यू? कितने लोगों का अकाउंट बना हुआ है? जस्ट टाइप अ मी इन द चैट विंडो इफ योर अकाउंट इज ऑलरेडी देयर। तो आई होप एवरीवन, क्योंकि लिंक्डइन का वर्कशॉप है तो ऑलरेडी तुम लोग के अकाउंट्स बने होंगे। यस, दैट्स ग्रेट। जस्ट गिव मी अ सेकेंड ना, थोड़ा सा यहाँ पे नेटवर्क का आई एम फेसिंग अ लिटिल बिट ऑफ इशू विद द नेटवर्क। जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके? तो ऑनलाइन में थोड़ा सा ये नेटवर्क वगैरह के थोड़े इशू आते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गोइंग टू फिक्स दैट फॉर यू। यस, नाउ सो आई कैन सी कि सभी का लिंक्डइन अकाउंट बना हुआ है। तो अभी सबसे पहली चीज़ जो है, व्हेन यू क्रिएट योर लिंक्डइन प्रोफाइल और व्हेन यू ऑप्टिमाइज योर लिंक्डइन प्रोफाइल, जो सबसे पहली चीज़ करनी है वो है अपने को अपना ऑब्जेक्टिव। यू नीड टू डिफाइन और फाइंड योर ऑब्जेक्टिव, एंड वंस यू हैव योर ऑब्जेक्टिव यू हैव टू आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस। अब ये ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज दिस ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव मतलब व्हाट आर यू प्लानिंग टू गेट आउट ऑफ योर लिंक्डइन प्रोफाइल। अगर तुम्हारा लिंक्डइन अकाउंट बना है तो व्हाट एग्जैक्टली आर यू ट्राइंग टू अचीव थ्रू योर लिंक्डइन? देखो, इफ यू आर अ स्टार्टअप ओनर, हो सकता कि यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड, हो सकता है तुमको यहाँ से लीड जनरेशन करना है। बट आई कैन सी की मेजॉरिटी जो यहाँ पर है, ऑल ऑफ यू आर जॉब सीकर्स, राइट? जॉब सीकर्स है तो यू आर ट्राइंग टू गेट अ जॉब। तो अब अगर हम जॉब अगर लेना चाह रहे, सो वॉट इज दैट यू आर ट्राइंग टू गेट अ जॉब? तो पहली चीज तुम लोग को, आई वॉन्ट यू टू टेक योर पेपर, लाइक आई सेड अर्लियर कि एक पेपर और पेन ले लो। ऑन दैट पेपर राइट डाउन कि व्हाट इज द जॉब दैट यू आर ट्राइंग टू गेट। देखो होता क्या, जो सबसे कॉमन क्वेश्चन जनरली जो लोग मिलते और बोलते हैं कि भाई हमको जॉब करनी है, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई आस्क हिम इज व्हाट स्किल डू यू हैव? कि भाई आपको क्या जॉब करना है? सिर्फ काम करना है बोलने से आपको जॉब मिलेगी क्या? नहीं। जैसा फॉर एग्जांपल लेट से आप एक वेबसाइट डेवलपर है, तो आप अपने क्लाइंट को जाके या जो भी आपका इंटरव्यू ले रहे हो उसको बोलेंगे भाई देखो, आपका ये बिजनेस है, आपका लेट से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, मैं आपके लिए वेबसाइट बना सकता हूँ, मेंटेन कर सकता हूँ। दिस इज हाउ यू अप्रोच। तो लेट्स से यू आर अ वेबसाइट डेवलपर और अ फुल स्टैक डेवलपर और अ पाइथन डेवलपर और अ जावा डेवलपर और अ मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, वट एवर द हेल इट इज। तो यू शुड बी क्लियर अबाउट इट कि भाई मैं क्या करना चाह रहा। जस्ट टेलिंग मेरे को जॉब चाहिए, दिस इज नॉट द राइट वे। ये राइट वे नहीं है। खाली जॉब चाहिए, क्या जॉब चाहिए, क्या काम आता, डोंट नो, ये नहीं। तो यू शुड बी क्लियर कि भाई क्या आता, व्हाट इज इट दैट यू वांट टू बिकम, क्या अपने को चाहिए, क्या जॉब लेनी है, वो अभी ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर लो। नाउ as Dr. Nazin ma'am said कि भाई your course already completed, so you have done some or the other kind of course at IRC. So that course is the skill set that for which you are looking the job. वो skill set के ऊपर आप job ले रहे, तो वो जो भी है वो आपको अभी लिख लेना है कि भाई हाँ मैं क्या हूँ, मैं एक वेबसाइट डेवलपर हूँ, मैं एक डेटा एनालिस्ट हूँ, मैं एक पावर एप्स का स्पेशलिस्ट हूँ, वट एवर इट इज, दैट्स योर ऑब्जेक्टिव। कि भाई जॉब लेना है, जॉब किस चीज़ में लेना है। तो लेट मी मेक इट लिटिल बिट सिंपलर फॉर यू सो दैट यू कैन ऑल्सो फॉलो अलॉन्ग। तो क्या लेना है आपको? व्हाट इज इट दैट यू वांट जॉब, राइट? एंड देन यू हैव टू राइट कि भाई जॉब किस चीज़ में। वेब डेवलपर हैं, डेटा एनालिस्ट हैं, पावर ऐप स्पेशलिस्ट है, वॉट एवर इट इज, ठीक है, एक्सेट्रा। दिस इज वॉट यू नीड टू नोट डाउन कि भाई मेरे को जॉब चाहिए और किस चीज़ में चाहिए, पहले ये क्लियर करो। नाउ द सेकेंड थिंग इज कि यहाँ पर व्हेन आई से कि यू नीड टू गेट योर टारगेट ऑडियंस, यू नीड टू आइडेंटिफाई अ टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई करने का मतलब है कि ये जॉब तुमको कौन दिला सकता। देखो जॉब तो वैसे तुमको डायरेक्टली कोई दिला नहीं सकता। द मोस्ट थिंग, द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन फॉर यू इज यू कैन गेट एन इंटरव्यू। जॉब लेने के लिए क्या चाहिए? इंटरव्यू। अगर तुम लोग को अभी भी लगता कि कोई है जो जॉब दिला देगा, तो यू नीड टू ग्रो अप। कोई जॉब नहीं दिला सकता, यू नीड टू गेट योर ओन जॉब। द मोस्ट दैट समवन कैन डू फॉर यू इज गेट एन इंटरव्यू, एंड देन यू हैव टू परफॉर्म इन दैट इंटरव्यू।
सुनने में लगता होगा कि यार ये तो ऑब्वियस चीज़ है, बट स्टिल पीपल डोंट गेट इट व्हेन इट कम्स टू देयर ओन प्रोफाइल, यानी अपने आप पे जब बात आती है तो लोग ये भूल जाते चीज़। तो इंटरव्यू कौन दिला सकता? तो अगर लेट्स से यू वांट टू बिकम अ वेब डेवलपर, और अब ये वेब डेवलपर बनना है, तो कहाँ पर वेब डेवलपमेंट की जॉब्स है, कौन कौन सी कंपनीज में है? तो हो सकता है देर आर सो मेनी आईटी कंपनीज जहाँ पर ये जॉब है। तो लेट्स से टीसीएस है, फॉर एग्जांपल टीसीएस में यू वांट टू अप्लाई एज अ वेब डेवलपर, तो वहाँ पर तुमको ये जॉब कौन या इंटरव्यू कौन करवा के दे सकता? तो यू नीड टू नोट डाउन दैट एज वेल कि भैया कौन। सबसे पहले द एचआर रिक्रूटर, वहाँ पे जो एचआर है दैट्स द रिक्रूटर, ये ले सकता। नेक्स्ट द प्रोजेक्ट मैनेजर, वो लोग जो प्रोजेक्ट मैनेजर की पोजीशन पे है, ये लोग तुमको एक इंटरव्यू दिलवा के दे सकते हैं, इंटरव्यू तक लेकर जा सकते हैं। एंड सेकंड, समवन वर्किंग इन द सेम प्रोफाइल बट एट अ हायर डेजिग्नेशन, सेम प्रोफाइल पे है लेकिन एक सीनियर पोजीशन पे है। लेट्स से यू आर अप्लाइंग फॉर अ जूनियर डेवलपर फॉर एग्जांपल, तो सीनियर डेवलपर भी रेफर करके तुमको इंटरव्यू तक पहुंचा सकता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो ये है तुम्हारा टारगेट ऑडियंस, एचआर, प्रोजेक्ट मैनेजर एंड सीनियर, वही स्किल में सीनियर पोजीशन पे काम करने वाले, सीनियर डेटा एनालिस्ट, सीनियर पावर ऐप स्पेशलिस्ट, सीनियर मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, जो भी है, वॉट एवर इट इज, दीज आर योर टारगेट ऑडियंस। ये बहुत जरूरी है समझना। पहले लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन में सबसे पहला स्टेप यही होता है। हम लोग क्या करते हैं जनरली, इंस्टाग्राम फेसबुक का जैसा प्रोफाइल है वैसा लिंक्डइन का प्रोफाइल बना दिए, उस पर कुछ तो भी अड़म धड़म डाल दिए, एंड देन बैठे हुए कि सर ना कोई इंटरव्यू आ रहा ना कोई जॉब लग रही। कैसे लगेंगी? अनलेस एंड अनटिल यू ऑप्टिमाइज योर लिंक्डइन प्रोफाइल, नथिंग विल हैपन। तो ये टारगेट ऑडियंस पहचानना पहले जरूरी है। ये क्यों मैटर करता, ये अभी थोड़ी देर में तुम लोग को समझेंगे कि व्हाई डज दिस मैटर, व्हाई दिस टारगेट ऑडियंस मैटर्स इवन। ठीक है, यस। So in order to find your objective, these are the three questions that you have to ask yourself. What do you do? What are your dream companies? Companies इसलिए कि भाई अभी ऐसा लोगों का तो ये हाल होगा कि भाई कुछ भी चलता जॉब होना चाहिए, but still it's good to have some dream companies, and then who can get you an interview. So these are the people who can get you an interview. These are your target audience. नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट चीज जो अपने को करना है कि लिंक्डइन को जो ऑप्टिमाइज करना है, तो वी हैव टू ऑप्टिमाइज इट इन थ्री वेज। देयर आर थ्री वेज टू ऑप्टिमाइज योर लिंक्डइन प्रोफाइल। यू हैव टू मेक इट सर्चेबल, क्लिकेबल एंड अप्रोचेबल। इसके क्या मीनिंग होते हैं, इसको अपन वन बाय वन डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस दिस वन बाय वन। सर्चेबल का क्या मीनिंग है, क्लिकेबल का क्या मीनिंग है, और अप्रोचेबल का क्या मीनिंग है। तो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट सर्चेबल। सर्चेबल का मतलब यह है कि अगर लिंक्डइन पे जाके अगर कोई आपको ढूंढ रहा, तो आप वहां पर दिखने चाहिए। इफ a recruiter, an HR is trying to search, let's say you are trying to become a web developer, you are trying to become a full stack developer, you are trying to become a Java developer, and if an HR is looking for an HR Java developer, you should be the one that should be ranking there. Your profile should be the profile that should be visible there. उसके सर्च करने पे आपकी प्रोफाइल दिखनी चाहिए। दैट्स व्हाट सर्चेबल मीन्स। तो अब ये सर्चेबिलिटी आती किस चीज़ों पे से, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अगर मैंने यहाँ पे जाके जावा डेवलपर सर्च किया, जावा डेवलपर, ठीक है, इफ आई टाइप जावा डेवलपर, और जावा डेवलपर में मैंने यहाँ पे पीपल सर्च किया, लुक वेरी केयरफुली, लुक वेरी केयरफुली। यहाँ पर ये जो आ रहे सर्च पे, द पीपल आई एम एबल टू सी, दिस इज कॉल्ड एज रैंकिंग, इसको बोला जाता रैंकिंग। तो अब अगर कोई जावा डेवलपर है, तो वो क्या क्या करे कि एचआर के रैंकिंग में सबसे ऊपर आए। तो यू हैव टू लुक एट दिस पार्ट। यहां पर तुम देखो कि क्या क्या चीजें दिख रही। सबसे पहला, यहां पर क्लियर कट उसके टाइटल में जावा डेवलपर लिखा हुआ है। द बिगेस्ट मिस्टेक दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू इज नॉट पुट द डेजिग्नेशन, नॉट पुट द क्लियर टाइटल। अभी सर मैं स्टूडेंट है, मैं तो अभी पढ़ाई कर रहा, मैं स्टूडेंट लिख देता। नो वन इज सर्चिंग फॉर स्टूडेंट, स्टूडेंट को कोई ढूंढ नहीं रहा। लेट इट वेरी क्लियर, मैं इंजीनियर, मेरे पास डिग्री है इंजीनियर। अरे एक अगर मैं पत्थर फेंकूंगा तो 10 में से 9 बार वो किसी इंजीनियर को जाके लगेगा। तो थिंकिंग कि भाई मैंने इंजीनियरिंग कर लिया, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट हो गया तो मेरे को जॉब लग जाएंगी, इट्स नॉट द रियलिटी। यू नीड टू ग्रो आउट ऑफ दैट। तो जो डेजिग्नेशन जो तुम चाह रहे वो तुम्हारे टाइटल में होना चाहिए। द टाइटल शुड हैव द डेजिग्नेशन दैट यू आर टारगेटिंग। अब बहुत से लोग इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं, सर लेकिन मैं काम थोड़ी करता हूँ डेजिग्नेशन पे। यस, तुम काम नहीं करते, लेकिन तुम सर्च में नहीं आ पाएंगे जब तक तुम वो टाइटल नहीं डालेंगे। नाउ टेल मी जस्ट टू नो कि भाई क्या कौन सी ऑडियंस है, उस हिसाब से मैं ऑडियंस के हिसाब से आगे की चीज़ों को ऑप्टिमाइज कर पाऊँ। सो जो मैंने अभी बोला तुम लोग को कि ये जॉब जो अपना ऑब्जेक्टिव है वो लिख दो। आई वॉन्ट टू नो इन द चैट विंडो व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द टारगेट designation that you are targeting. I want each and every one of you to write in the chat window what is the designation you are targeting. You have to be very clear ना। कोई अगर ये बोलेगा ना
कि सर मेरे को कुछ भी जॉब चलती, मेरे को सब आता। सो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि कंपनीज आर नॉट लुकिंग फॉर जैक ऑफ ऑल, कंपनीज आर लुकिंग फॉर मास्टर ऑफ वन। व्हाट इज दैट यू आर मास्टर इन, और नहीं है तो अभी मास्टरी में बना लो या प्लान कर लो अभी से कि भाई हाँ मेरे को इसमें मास्टरी करनी है। यस, आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन टू राइट। कितने लोग हैं? 23 लोग हैं, तो 23 आंसर्स आई नीड कि भाई व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द डेजिग्नेशन यू आर टारगेटिंग। Yes, so we have CRM developer, we have business data analyst, we have Power Apps developer, we have DevOps, we have social media marketer. Website designer. Okay. What about this? No objective. तो अगर ऑब्जेक्टिव नहीं है तो ऐसा है जैसा गाड़ी में बैठे लेकिन पता ही नहीं है जाना कहाँ है ना? गाड़ी में तो बैठ गए बट जाना कहाँ है यही नहीं पता। तो पहले भाई अपनी डेस्टिनेशन तो डिसाइड करो, तब फिर लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन कुछ काम का बनेगा। इफ यू डोंट नो दैट देन इट इज वेरी डिफिकल्ट। जूलॉजी रिसर्चर, ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज शेख आदिल। ठीक है, अपन क्या करते हैं, डायरेक्टली आई एम गोइंग टू गो एंड ओपन द प्रोफाइल। शेख आदिल, डू यू हैव योर प्रोफाइल विद द सेम नेम? लेट्स सर्च फॉर शेख आदिल। Okay, Sheikh Adil, could you guide me which one is yours? Yeah, आई नहीं। You can unmute yourself. If possible, Sheikh Adil, can you share your link directly on the chat? Sir can directly connect it. That would save both time, if possible. Or if anybody else is ready with your LinkedIn link and they can discuss here. ठीक है, let it be, no problem. So let's go back to this point. Mine can be checked. Aska Anam. Okay. Aska Anam. Just guide me which one is there. क्योंकि एक नाम के तो कई लोग हो सकते हैं. Just guide me whether or not it's the same profile. Is this the one? The first one, yes. Yes, तो देखो यहाँ पर क्या है, सीधा क्या आ गया, कंप्यूटर साइंस अंडर ग्रेड। दिस इज नॉट वॉट पीपल आर लुकिंग फॉर। सी, डोंट टेक इट लाइक पर्सनली, हम यहाँ सीखने के लिए आए हुए हैं। द रीजन आई एम टेलिंग यू इज, ठीक है डेवऑप्स इसमें आ गया, कीवर्ड में आ गया, बट व्हाट आई रेकमेंड इज कि आप यहाँ पे ये मत दिखाओ कि आप अभी सीख रहे, है ना। लोगों को वो लोग नहीं चाहिए जो सीख रहे, अब कंपनी को चाहिए पहले से जिसको सब कुछ आता। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। देखो, इफ यू आर फॉलोइंग ट्रेंड्स, जो लोग आईटी, अभी ऑलमोस्ट एवरीवन इज फ्रॉम आईटी, व्हाट आई कैन सी, वन इज फ्रॉम जूलॉजी, बट अदर देन दैट व्हाट आई कैन सी इज कि सभी आईटी से हैं। लेट मी टेल यू वन वेरी हार्श रियलिटी ऑफ आईटी इंडस्ट्री। अगर तुम लोग साल 2 साल से अगर फॉलो कर रहे होंगे न्यूज़ में, तो कोई फ्रेशर की हायरिंग नहीं हो रही, फ्रेशर की हायरिंग बंद हो गई। उसका सीधा सीधा रीज़न है कि जो L1 लेवल का, एंट्री लेवल का काम है, वो पूरा एआई एजेंट्स आज कर रहे। जिन लोगों को ऑफर लेटर्स आए थे वो अभी ऑफर लेटर लेके बैठे हुए हैं फ्रेशर्स, उनको कंपनी नहीं बुला रही। दिस इज़ अ वेरी डेंजरस रियलिटी प्लस ऑल्सो, लेकिन हर चीज़ को देखने के दो नज़रिए रहते हैं, ठीक है ना, हर सिक्के के दो रुख रहते हैं। सो फ्रेशर पे तुम ये भूल ही जाओ कि जॉब लगेंगी और कोई तुमको फ्रेशर पे जॉब देगा। एज एआई काम कर रहा, अगर फ्रेशर पे जॉब लेनी है देन यू नीड टू कम्पीट विथ एआई। एआई 24 घंटे काम कर सकता, तुम नहीं कर सकते। एआई को खाना नहीं है, वॉशरूम नहीं जाना है, उसको रेस्ट नहीं चाहिए, वो 24 घंटे 24/7 काम करेगा। तो L1 लेवल का, एंट्री लेवल का जॉब्स आईटी में अब खत्म हो चुका।
सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट लेवल पे ही आपको काम मिलेगा एंड यू हैव टू शो योर एक्सपर्टीज. तो हियर शोइंग दैट यू आर लर्निंग समथिंग which means you are competing with an AI, L1 AI, and you cannot beat AI at that level. You can beat AI only at expertise when you get at L2 level, L3 level. So now you need to directly write here कि DevOps engineer, right? Directly कोई प्रॉब्लम नहीं. No one is going to tell you अरे ऐसा कैसा लिखा. No, yes, I know I have learned DevOps and I can directly write. क्यों लिखना है अपने को? क्योंकि अपने को रैंक करना है. When I write DevOps, you should rank, your profile should rank. तो इसलिए ये टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है. तो योर टाइटल शुड बी क्लियर, योर टाइटल शुड कंटेन योर ऑब्जेक्टिव. जो ऑब्जेक्टिव है वो टाइटल में आना चाहिए. नेम एंड देन टाइटल. नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट है द बिगेस्ट मिस्टेक दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू इज दिस. औरंगाबाद में क्या कोई आईटी कंपनी है? नहीं है. क्या कोई औरंगाबाद में किसी को ढूंढ रहा? किसी को कोई नहीं ढूंढ रहा औरंगाबाद में. सो नाउ वंस अगेन इफ आई गो एंड सर्च फॉर जावा डेवलपर, एंड क्योंकि अभी मैं औरंगाबाद में, मेरी प्रोफाइल औरंगाबाद में, इसलिए यहाँ पर लोग औरंगाबाद में रैंक कर रहे हैं. बट इफ़ आई लेट से मैं यहाँ पे पुणे में सर्च कर रहा हूँ. लेट्स से इफ आई एम सर्चिंग इन पुणे, माई कंपनी इज इन पुणे. आईटी कंपनीज कहाँ कहाँ पर है? पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर, दिल्ली एंड सो ऑन. औरंगाबाद में कुछ नहीं है. ये पुणे में तो कोई प्रोफाइल दिखा ही नहीं रहा मेरे लिए. तो लेट मी चेंज दैट. लेट्स से हैदराबाद. यस. तो तुम्हारा जो एचआर है ना, वो कहाँ पर बैठा हुआ है? वो बैठा हुआ है पुणे में, मुंबई में, हैदराबाद में, चेन्नई में, बैंगलोर में. सो इफ यू कीप औरंगाबाद देन यू वॉन्ट रैंक. देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने हैदराबाद लोकेशन डाला, क्योंकि मेरी औरंगाबाद थी इसलिए मेरे को हैदराबाद ऐसे डालना पड़ा, वरना मेरे को डालने की नीड थी नहीं. जब मैं मेरी प्रोफाइल पे औरंगाबाद डाला हुआ है इसलिए मेरे को चेंज करना पड़ा. बट लुक एट दिस वेरी क्लियरली. यहाँ पर नाम, नाम के बाद यहाँ पे नीचे आया क्लियर टाइटल, टाइटल के बाद क्या आ रहा? लोकेशन. वेरी इंपॉर्टेंट. तो तुम लोग को लोकेशन वो डालनी है जहां पर तुम्हारी ड्रीम कंपनी है या जिस कंपनी में तुमको लगता जॉब मिल सकती. मेरे को ये बताओ औरंगाबाद में जॉब्स है क्या? कोई जॉब नहीं है. आईटी कंपनीज नहीं है तो जॉब कहाँ से रहेंगी? सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू चेंज फ्रॉम औरंगाबाद. ये बहुत ही लोगों को रेयर लगता है और बहुत अजीब लगता है कि सर आप सिटी क्यों चेंज करने बोल रहे हैं, मैं तो यहाँ रहता भी नहीं. अरे बाबा, लिंक्डइन थोड़ी ना तुम्हारा आधार कार्ड है जो तुमको यहाँ पे एग्जैक्ट प्रूफ देना है. नो, चेंज द सिटी टू हैदराबाद, पुणे, बैंगलोर. जहाँ तुम जॉब लेना चाह रहे वहाँ पर ये सिटी चेंज करो. वेरी इंपॉर्टेंट, चेंज योर लोकेशन. क्योंकि लोकेशन रैंकिंग में आ रहा. देखो ये सब चीज़ें रैंकिंग में, ये सब चीज़ें नजर आ रही ना, ये सब चीज़ें रैंकिंग डिफाइन करती. नेक्स्ट, लोकेशन के बाद क्या है? एक्सपीरियंस. देखो एक्सपीरियंस, अब जो लोग फ्रेशर है तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट पुट एनी एक्सपीरियंस. बट लेकिन अगर तुमने कहीं इंटर्नशिप कर रखी है तो वो डालो. दैट ऑल्सो काउंट्स एज अ पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस. अभी इंटर्नशिप्स लेना, इंटर्नशिप्स करना इतना कुछ मुश्किल रहा नहीं. देर आर मेनी पीपल गिविंग आउट फ्री इंटर्नशिप्स. यू कैन जस्ट टेक इंटर्नशिप फ्रॉम एनी वेयर एंड दैट विल काउंट एज एन एक्सपीरियंस. एंड आई विल हाईली रिकमेंड कि भाई तुम कहीं ना कहीं से, जहाँ से भी इंटर्नशिप कर रखे गए, पहले तो कहीं से करो, और करने के बाद जहाँ से भी किया उसका नाम डालो. ठीक है. नेक्स्ट देखो और क्या रैंक में आ रहा? स्किल समरी, है ना, जो अबाउट अस, अबाउट वाला सेक्शन है, उसमें से भी ये कीवर्ड उठा रहा. देखो इसके टाइटल में भी जावा है, स्किल में भी जावा है, इसलिए सबसे ऊपर आया. दिख रहा ना? यहाँ पर भी इसकी समरी में क्या है? जावा, इसलिए ऊपर आया. देखो हाईलाइट, देखो लिंक्डइन खुद तुमको बता रहा हाईलाइट करके. देखो दीज आर द कीवर्ड्स. तुम सर्च कर रहे जावा के लिए तो यहाँ यहाँ से इसने पिक किया. नेक्स्ट, तो ये अपने अबाउट में भी होना चाहिए. तो इफ आई टेक यू टू माई प्रोफाइल, नाइल से सर आपने तो औरंगाबाद डाल रखा, हमको औरंगाबाद मत डालो बोल रहे. मैं जॉब नहीं ढूंढ रहा. आई हैव माई बिजनेस इन औरंगाबाद एंड माई पोटेंशियल ऑडियंस इज ऑल्सो इन औरंगाबाद. जो मेरी ऑफलाइन ट्रेनिंग है, मेजोरिटी कोर्सेज आर ऑफलाइन, तो इसीलिए मैंने औरंगाबाद रख रखा. जब मेरी ऑफलाइन बैच वगैरह रही, ऑनलाइन बैच रही, चेंज दैट टाइम, मैं उस लोकेशन चेंज करते रहता. सो नाउ अभी फिलहाल सब ऑफलाइन चल रहा तो आई हैव केप्ट इट टू औरंगाबाद. बट तुम लोग वो नहीं बोलेंगे सर तुमने तो रखा ऐसा नहीं. नाउ आई एम नॉट सर्चिंग फॉर अ जॉब, आई एम बिल्डिंग अ पर्सनल ब्रांड ऑन लिंक्डइन. तो इसीलिए मैंने टाइटल्स में जॉब नहीं डाल रखा है. कहीं पे मैंने यहाँ पे क्या डाल रखा है? एंटरप्रेन्योर फाउंडर डाला गया नहीं, बिकॉज नो, आई जस्ट वांट टू बिल्ड माय ब्रांड. एंटरप्रेन्योर ट्रेनर, मेंटर, करियर कोच एंड एआई स्पेशलिस्ट. नाउ एक और बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, आई वांट टू शो यू, क्योंकि रैंकिंग में क्या है वो जनरली देखने नहीं मिलता. यू डोंट गेट टू सी दैट इन रैंकिंग. जस्ट अ सेकंड. यस. व्हाट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू, देखो इसमें से जो रैंक्ड लोग हैं ना, उन्होंने वैसे ये ऐसी हरकतें की नहीं है, इसीलिए उनका रैंक कर रहा. बहुत से लोग हैं ना टाइटल में है ना,
ये डाल देते, टेक्नोलॉजीज के नाम डाल देते डायरेक्टली, जैसे फॉर एग्जांपल डेवऑप्स, जेनकिंस, CI/CD, टेराफॉर्म, क्यूबरनेटिस। अरे भाई क्यूबरनेटिस क्या डेजिग्नेशन का नाम है? जेनकिंस क्या डेजिग्नेशन का नाम है? ऑब्वियसली नॉट, ऑब्वियसली नॉट। तो ये सब टाइटल में नहीं डालने का, टाइटल में शुड बी क्लियर। देखो जो लोग रैंक कर रहे हैं ना उनके क्लियर टाइटल्स है। अभी जिसने देखो डेवलपर लिखा जावा और रिएक्ट जेएस, डेवलपर फॉर जावा एंड रिएक्ट जेएस, ठीक है, लेकिन यहाँ भर देना पूरा 10-15 स्टैक कर देना, पाइप मार के स्टैक कर देते लोग। दैट्स नॉट वेरी एक्यूरेट, बहुत अच्छा भी नहीं लिखता। अभी देखो इसने भी बहुत बड़ा लिख दिया, ये दिस इज नॉट समथिंग दैट यू राइट इन द टाइटल सच अ लॉन्ग, ठीक है। ये मोस्टली इट इज ट्राइंग टू बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड, इसलिए उसने ये सब लिख रखा है, 85K प्लस लिंक्डइन फैमिली, 100 मिलियन प्लस। तो ये अब ठीक है, चलो ये तो ये बिल्ड कर रहा है, इट इज बिल्डिंग अ पर्सनल ब्रांड। बट जो लोग पर्सनल ब्रांड नहीं बिल्ड कर रहे, जॉब सीख कर रहे, तो इट शुड बी क्लियर। देखो इसके टाइटल से क्लियर हो गया, इज ट्राइंग टू बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड, आगे आना लग गया ना, चल जाता। लेकिन तुम लोग पर्सनल ब्रांड नहीं बना रहे, तुम लोग जॉब ढूंढ रहे, तो जॉब के हिसाब से टाइटल होना चाहिए, ठीक है। तो टाइटल में पाइप कर करके टेक्नोलॉजी के नाम मत डालो, दैट्स अ बिग मिस्टेक, दैट्स अ ह्यूज मिस्टेक दैट यू कैन डू। नेक्स्ट, शेयर्ड कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टारगेट ऑडियंस था ना, क्यों टारगेट ऑडियंस जरूरी है अब समझेंगे। देखो रैंकिंग में म्यूचुअल कनेक्शंस लास्ट में जो आ रहा वो है म्यूचुअल कनेक्शंस। तो अगर तुम तुम्हारे एचआर के सर्च में रैंक करना चाह रहे तो वो एचआर तुम्हारे कनेक्शन में होना चाहिए, वो प्रोजेक्ट मैनेजर तुम्हारे कनेक्शन में होना चाहिए, और वो सीनियर डेवलपर या सीनियर रोल वाला बंदा तुम्हारे कनेक्शंस में, कॉमन कॉन्टैक्ट में होना चाहिए, क्योंकि ये रैंकिंग डिसाइड करता, दिस थिंग्स डिसाइड द रैंकिंग। लेकिन यहाँ चिल्ला चिल्ला के बोल रहा कि क्या चीज़ें हैं जो रैंकिंग में काम आती, लेकिन हम लोग कर ही नहीं रहे, वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दैट। सो ट्राई, दैट्स द रीजन वाई यू नीड टू हैव दिस टारगेट ऑडियंस। ये टारगेट ऑडियंस होना इसलिए ज़रूरी है, ऑब्जेक्टिव एंड देन द टारगेट ऑडियंस, योर TG, है ना। पहले समझता नहीं इनिशियली कि भाई क्यों बोल रहे हैं ये सब, तो ये लोग हैं जो तुम्हारे प्रोफाइल पे होने चाहिए। रीच आउट टू देम, क्रिएट अ कनेक्शन विद देम, उनके साथ तुमको कनेक्शन बनाना है, यू नीड टू कनेक्ट विद दोज पीपल, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन। देखो यहाँ पर है ना, डिस्क्रिप्शन और एंडोर्समेंट्स भी आते हैं, एंडोर्समेंट्स तो लास्ट में है। डिस्क्रिप्शन में मतलब जो प्रोफाइल के अंदर जहाँ जहाँ डिटेल्स है, लेट मी टेक यू टू माई प्रोफाइल। देखो यहाँ पर ये जो अबाउट सेक्शन है, दिस इज द वन विच अ लॉट ऑफ पीपल इग्नोर। ये अबाउट सेक्शन में तुमको तुम्हारे कीवर्ड्स डालने हैं, तो आई हैव पुट ऑल द कीवर्ड्स रिलेटेड टू डेटा। अगर मैंने यहाँ पे सर्च किया, लेट्स से डेटा, तो सी हाउ मेनी प्लेसेस यू विल फाइंड, और या फिर डेटा इंजीनियरिंग डाल देता हूँ। तो यू कैन सी कि मैं डेटा इंजीनियरिंग के लिए मैंने इतनी बार डाल डाल के रखा हुआ यहाँ पे, ताकि ये रैंक हो। इफ समवन इज लुकिंग फॉर अ ट्रेनर फॉर डेटा इंजीनियरिंग, दे विल बी एबल टू सी, दे विल बी एबल टू सी डेवऑप्स, डेटा एनालिटिक्स, ये सब कुछ यहाँ देख पाएंगे। तो ये अबाउट सेक्शन में अपने कीवर्ड डालना बहुत ज़रूरी है। क्रिएट योर ओन स्टोरी, अपने बारे में यहाँ डालो थोड़ा, भाई क्या करते, क्या नहीं करते, क्या स्किल्स आते, यू हैव टू पुट इन द अबाउट सेक्शन। अ लॉट ऑफ पीपल लीव देयर अबाउट सेक्शन एम्प्टी, या एम्प्टी डालेंगे, या फिर एम्प्टी नहीं भी डाला तो कुछ ऐसी चीज़ें डाल देंगे जो इररिलेवेंट है। पुट योर कीवर्ड्स हियर, व्हाई? बिकॉज जब मैं सर्च कर रहा था तो देखो इट वॉज गेटिंग इट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन एज वेल। यहाँ सर देखो स्किल्स में से, समरी में से इसने उठाया, यस। तो मेक श्योर टू पुट दैट अंडर डिस्क्रिप्शन एंड ऑल एवरीथिंग, वहाँ पे कीवर्ड्स डालो। एंड लास्ट इज एंडोर्समेंट्स। ये एंडोर्समेंट्स भी बहुत काम आते हैं जब हम किसी के प्रोफाइल पे जाते हैं और उसके स्किल्स देखते हैं। जैसे इफ यू गो ऑन माई प्रोफाइल एंड इफ स्क्रॉल डाउन, एंडोर्समेंट्स के लिए अगर हम जाएं, तो यस, तो यू कैन सी यहाँ पर 76 एंडोर्समेंट्स ऑन बिग डेटा स्किल। तो जब कोई तुम्हारे प्रोफाइल पे आता तो ये एंडोर्समेंट्स उसको समझ में आता कि भाई हाँ, ये बंदे को ये चीज़ आती, इतने लोगों ने इसको इसके लिए एंडोर्स किया हुआ है। नो विल से कि अरे सर मेरे को कौन एंडोर्स करके देगा। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो समझो तुम लोग, कि जब एक्चुअली इफ आई गो 10 years बैक, 10-12 years बैक, जन आई यूज टू सर्च फॉर द जॉब, तो हम लोग क्या करते थे, जितने भी हम लोग आपस में दोस्त वगैरह है, फ्रेंड्स हैं, जो हमारा ग्रुप है, वी यूज टू एंडोर्स ईच अदर, है ना, रिकमेंडेशंस एंड एंडोर्समेंट्स दोनों के लिए। तो अभी जितने लोग यहाँ पे अभी फिलहाल मीटिंग में है, हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर? 27 ऑफ यू आर देयर। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एक्सचेंज योर प्रोफाइल्स, एक्सचेंज मतलब अपना बताओ अपने प्रोफाइल के बारे में और एक दूसरे को एंडोर्स करो। अब यहाँ पे ईगो नहीं कि उन्हें करा तो फिर मैं करूंगा, नो, दिस इज नॉट द राइट वे। यू गो अहेड, एंडोर्स योर फ्रेंड एंड देन टेल कि भाई मैंने तेरे को एंडोर्स किया, तो भी मेरे को कर दे। डोंट वेट कि भाई सर आपने बताए थे लेकिन वो मेरे को तो कोई कर रहा नहीं, मेरे को जब करेगा तो फिर मैं रिप्लाई में करूंगा। डोंट डू दैट। यू योर सेल्फ एंडोर्स अदर पीपल एंड देन रिक्वेस्ट देम। ये ऐसे ही करके करना पड़ता, वरना रुकेंगे कि भाई ऑर्गेनिकली आ जाए, खुद से ही कोई दे दे, क्यों कोई ला के देगा। सो यू गाइज जो ग्रुप में है, तुम लोग का अगर कोई ग्रुप बना हुआ है, तो इन दैट ग्रुप पोस्ट योर प्रोफाइल, पहले दूसरे लोगों की प्रोफाइल, अपने दूसरे जो जान पहचान के हैं, एटलीस्ट फ्रेंड ग्रुप में जो है या क्लास में है, कॉलेज में है, उनके प्रोफाइल्स को एंडोर्स करो।
और बोलो कि भाई आप भी मेरी प्रोफाइल पे एंडोर्स करो। रिकमेंडेशन लिखो और रिकमेंडेशन पहले अपने से इनिशिएटिव लेके अपने फ्रेंड का लिखो और उसको बोलो कि भाई तू भी मेरे को एक ये रिकमेंडेशन डाल। दिस वे यू कैन बिल्ड योर एंडोर्समेंट्स एंड रिकमेंडेशन। ये हैक्स है, ये हैक्स यूज करना जरूरी है, ठीक है ना, वरना खुद से कोई आके कोई किसी को एंडोर्स करने वाला नहीं है, ठीक है। चलो, even you can share your profile with me and I will endorse the skills with you, so you can share your profiles, I will endorse that for you। तो ये हो गया सर्चेबल, मतलब अगर कोई आपको ढूंढ रहा तो आप यहाँ पर उसके सर्च में दिखने चाहिए, ग्लोबल नहीं। लिंक्डइन पे सर्च काम करती इंडिविजुअल बेसिस पे, इसीलिए अपने को टारगेट ऑडियंस बिल्ड करना जरूरी है, ठीक है। सो अपने जो टारगेट ऑडियंस है, अच्छा ये जो टारगेट ऑडियंस है इसको ढूंढना कैसे है, कनेक्ट कैसे करना है, वो अभी आगे आएंगे, आई विल शो यू हाउ टू डू दैट एग्जैक्टली, ठीक है। तो अभी हो गया सर्चेबल, ये हो गया पहला पार्ट। सी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम किसी को अगर ऐसा लग रहा कि कुछ क्वेश्चन है जो पूछने हैं, तो आई एम ओपन फॉर दैट। यू हैव द चैट विंडो, यू कैन जस्ट पोस्ट इन द चैट विंडो, आई विल बी लुकिंग एट द चैट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना ऐसा नहीं है कि यू कैन नॉट आस्क, यू कैन आस्क एनीथिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। जैसा कुछ नहीं समझ रहा किसी पॉइंट पे तो यू कैन ईजिली जस्ट आस्क इन द चैट विंडो। Now, once you have optimized for searchable, next comes clickable। क्लिकेबल का मतलब यह है कि भाई बंदे को यहाँ पर ये पूरा देख के मेरे को यहाँ पे एज एन HR, एज ए रिक्रूटर, ये फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ यार ये बंदा भारी दिख रहा, इसकी प्रोफाइल चेक करते, इसको अपन कनेक्ट करते, इसको इंटरव्यू के लिए बुलाते। ये क्लिकेबिलिटी आती किन चीज़ों पे? तो बेसिकली क्लिकेबिलिटी और सर्चेबिलिटी सिमिलर ही है। अगर तुमने सर्चेबल के लिए ऑप्टिमाइज किया हुआ है तो क्लिकेबल का भी आधे से ज़्यादा काम हो चुका। कुछ एक से दो चीज़ें रहती है क्लिकेबल में जो अपने को ऑप्टिमाइज और करना है। सबसे पहला प्रोफेशनल हेडशॉट। देखो यहाँ पर लुक एट द प्रोफाइल्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, दिल पे हाथ रख के बोलो इसमें से तीनों चारों में से सबसे प्रोफेशनल कौन लग रहा? ये लग रहा नहीं लग रहा? क्यों? क्योंकि इसका एक क्लियर हेडशॉट है, प्रोफेशनल अटायर है ना, फेस इज क्लियरली विजिबल। ये बंदे का थोड़ा ठीक लग रहा क्योंकि इसने अपने कंपनी का यहाँ पे ब्रांडिंग दिया, यू कैन सी इज अ प्रोफेशनल। ये एक बहुत ही कैजुअल फोटो है, दिस इज अ वेरी कैजुअल इंस्टाग्राम लाइक फोटो। ये भाई झाड़ पत्तों में खड़े हुआ है, दिस इज ऑल्सो नॉट अ क्लियर हेडशॉट। क्लियर हेडशॉट इज समथिंग दैट लुक्स लाइक दिस, या फिर अगर मेरी प्रोफाइल पे भी इफ यू कम, दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल हेडशॉट। प्रोफेशनल हेडशॉट यानी आपके सिर से लेके बस यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड एज हेडशॉट। नाउ हेडशॉट, अब हेडशॉट लेने के लिए कोई मुश्किल नहीं है भाई, फ़ोन है और हम लोगों को इतनी आदत है फ़ोटोज़ खींचने की, तो कोई भी फ़ोन वगैरह से भी आप कहीं भी एक अच्छे प्रोफेशनल अटायर में, मोस्ट प्रेफरेबली कि भाई सूट वगैरह में, ब्लेजर में हो, वो लो। फीमेल्स के लिए भी यू हैव टू टेक इन अ, जो भी फॉर्मल्स है उसमें ले सकते, बुरखे में भी यू कैन कीप, इफ यू हैव अ गुड प्रोफेशनल स्टाइल में यहाँ तक ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू हैव टू कीप दैट। लेकिन ये रखना है, फोटो रखने से जेन्युइन लगता प्रोफाइल और एक ह्यूमन टच आता, ह्यूमन टू ह्यूमन टच। अभी AI की इतनी दुनिया हो गई कि पीपल आर लुकिंग फॉर दैट ह्यूमन टच। तो ह्यूमन टच के लिए आपको एक प्रोफेशनल क्लियर हेडशॉट लेना है। बैकग्राउंड में फूल पत्ते कुछ भी आ रहा, ये देखो अभी यहाँ पे क्या है, ये ब्राइटनेस चमक रहा और ये फेस से यहाँ पे हट जा रहा है, कैन सी हियर की जो बंदे का फेस है, फेस के अलावा यहाँ पे जो ब्राइटनेस है चमक गया, इट शुड नॉट बी देयर। देखो प्लेन बैकग्राउंड है, दिस इज व्हाट अ प्रोफेशनल हेडशॉट लुक्स लाइक। और लिंक्डइन ने इसीलिए इसको ऊपर डाला क्योंकि सब चीजें मीट हो रही है यहाँ पे, क्लिकेबल है, बंदे को देख के लग रहा कि प्रोफेशनल है। नेक्स्ट, टाइटल शुड बी क्लियर। तो टाइटल हमने सर्चेबल में भी ऑप्टिमाइज किया हुआ है। लोकेशन, लोकेशन वापस से मैं रिपीट करूंगा, लोकेशन भाई औरंगाबाद से चेंज करो, जहाँ पर तुमको जॉब लेनी है वहाँ पर डालो। मेरे को औरंगाबाद छोड़ना ही नहीं है, ठीक है रखो फिर, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर जॉब लेनी है IT में तो औरंगाबाद तो छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यस, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम अपने सिटी का ये है कि किसी को औरंगाबाद ही नहीं छोड़ना है, यहीं पे चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ है नहीं। एंड वंस अगेन शेयर्ड कनेक्शंस, द शेयर्ड कनेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए वही अपनी TG टारगेट ऑडियंस। तो ये क्लिकेबल हो गया। नाउ क्लिकेबल के बाद है थर्ड है अप्रोचेबल। मतलब अगर अब मैंने इस बंदे की प्रोफाइल पे क्लिक किया तो अप्रोचेबल होना चाहिए। अप्रोचेबल का मतलब है कि ये बंदा को मैं इजीली कनेक्ट कर पाऊं। होता क्या, लिंक्डइन पे लेट्स से आई एम अ रिक्रूटर, तो मेरे को किसी बंदे का अगर सर्च करके उस तक पहुंचना है तो फोन नंबर, ईमेल ID लिंक्डइन पैसे देने पर ही देता। तो तुमको अप्रोचेबल ऐसे होना है कि अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहीं पर डाल दो, जैसा दिस पर्सन हैज एक्चुअली ऑप्टिमाइज वेरी गुड, इसने अच्छा, काफ़ी अच्छा ऑप्टिमाइज कर रखा है, दिस पर्सन किरण सोनवने। देखो यहाँ पे इसने अपना नाम डाला, जावा डेवलपर वापस से यहाँ पर लिखा, और यहाँ पर देखो उसका फ़ोन नंबर और ईमेल ID दे दिया ना। अगर मेरे को इसको कांटेक्ट करना है तो मेरे को लिंक्डइन को पैसे भरते बैठने की नीड नहीं है कि भाई इसका फ़ोन नंबर निकाल के दे, यहीं पर इसने डाल दिया ना। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू सी कि भाई जब ये पेज मैंने खोला तो इसमें देखो कि सबसे पहली चीज़ क्या नजर आ रही, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट अ पर्सन विल सी। तो प्रोफाइल को अपन ने ऑप्टिमाइज कर ही दिया, ये देखो कितना बड़ा स्पेस कंज्यूम कर रहा, दिस
स्पेस, अ लॉट ऑफ, ऑलमोस्ट हम बोलेंगे कि भाई पेज का ये 25 to 30% ऑफ द स्पेस इज कंज्यूम्ड बाय दिस पार्ट। और बहुत लोग बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, बैनर डालते ही नहीं। ये बैनर डालो, बैनर पे क्या डाल सकते हैं, बैनर पे बस ये ऐसा डाल दो भाई तुम क्या करते, टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ डालो। कैनवा का फुकट में बन जाता बैनर, कैनवा में पैसे भी नहीं कि भाई ग्राफिक्स डिजाइनर कहाँ से लाऊं सर मैं, नो, कैनवा में जाओ फुकट में बना लो। प्रीमियम वाले भी जरूरत नहीं है, फ्री वाले में तुमको लिंक्डइन बैनर डालो, एक से एक मिल जाएंगे। लेट्स से यू हैव डन सम काइंड ऑफ एक्टिविटी, भाई तुमने कोई किसी टेक्निकली फेमस पर्सन से तुम मिले, या तुमने कोई इवेंट किया, उसकी फोटो डालो, नीचे अपनी डिटेल्स मेंशन करो, या रेलिवेंट कुछ चीज़ें डालो। और नहीं कुछ कर सकते तो देखो दिस बंदे ने जैसा कि अपना नाम, अपना टाइटल, और नाम और नंबर और ईमेल आईडी, दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन डू। नेक्स्ट, उसके बाद देखो टाइटल शुड बी क्लियर, लोकेशन, और ये आ गया। और इसके बाद आ गया अबाउट सेक्शन, वंस अगेन अबाउट। अभी देखो बहुत ही छोटा अबाउट सेक्शन है, इतना नहीं। अबाउट में तुमको जब दे रहा वो एक बड़ा अबाउट लिखने का, तो यू कैन गिव, जैसा इफ आई टेक यू टू माय प्रोफाइल, यू कैन सी देयर इज अ ह्यूज अबाउट सेक्शन। व्हेन समवन कम्स टू माय प्रोफाइल, उसको क्लियरली दिख जाता। मैंने भी यहाँ देखो क्या लिख रखा है, डेटा इज द न्यू ऑयल, लेट द न्यू ऑयल शेप योर करियर। वेबसाइट का यूआरएल भी है, फोन नंबर भी है, क्लियर कट। इफ समवन कम्स देन दे नो विच नंबर टू कॉल, विच वेबसाइट टू विजिट। नेक्स्ट, उसके अलावा फिर मैंने यहाँ पे एक लिंक भी दे रखा है जिससे डायरेक्टली हमारे जो वेबसाइट है उस पर चला जाता ना। यू डोंट नीड दिस, लेकिन अगर करना है तो तुम इसके ऊपर अपना एक पोर्टफोलियो बना के डाल सकते हैं। लेट्स से तुम डेवलपर है तो अपना कुछ पोर्टफोलियो तुमने बनाया जहाँ प्रोजेक्ट्स है, प्रोजेक्ट होस्टेड है, तो चेकआउट माई पोर्टफोलियो, और फिर वो वहाँ लेकर चला जाएगा। उसके बाद नीचे अगर आएंगे तो देखो अबाउट सेक्शन है। अबाउट सेक्शन में यहाँ पर टॉप स्किल्स देखो दिखा रखे, भाई टॉप स्किल्स बंदे के दो है, क्लाउड एंड डेटा इंजीनियरिंग, तो ये मैंने ही अपने लिए ऑप्टिमाइज कर रखे हैं। एंड देयर इज अ ह्यूज अबाउट सेक्शन, किसी को अगर मेरे बारे में मालूम करना है तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज देयर। जब भी लोग मेरे पूछते कि भाई सर आपके बारे में चाहिए, मैं बोलता जस्ट गो ऑन लिंक्डइन, यू फाइल एवरीथिंग दैट इज देयर टू नो अबाउट मी प्रोफेशनली, सब कुछ यहाँ है। तो यूटिलाइज दिस, इतना बड़ा सेक्शन दे रखा है ना लिंक्डइन ने, यूज करो, यूज करो। नेक्स्ट, इसके बाद देखो एक और सेक्शन है जिसका नाम है फीचर्ड सेक्शन। बहुत ही कम लोग हैं ये फीचर्ड सेक्शन का यूज करते। फीचर्ड सेक्शन में ये तो समझो मैंने पेड लिंक्स डाल रखे हैं, तुम लोग को पेड लिंक डालने की नीड नहीं है, बिकॉज एज ऑफ नाउ यू आर नॉट अर्निंग। बट इफ यू आर अर्निंग देन यू कैन यूज दिस पीक डॉट लिंक। पीक डॉट लिंक करके ये पेड सर्विस है, इसमें तुम लोग को ऐसा डायरेक्टली लिंक आते हैं, इट विल टेक्स यू डायरेक्टली टू वेर एवर यू वांट। तो अगर यहाँ पर मैंने जो हमारा डेमो होता है उसकी लिंक डाल रखा है, कोर्स की लिंक डाल रखा है, और एक मेरा पर्सनल ब्रांडिंग के लिए मेरा पर्सनल पेज है जहाँ पे ये जो मैं सेशंस वगैरह करता हूँ उसकी डिटेल्स हैं। तो इफ समवन वांट्स यू कैन जस्ट क्लिक हियर एंड इट विल टेक यू देयर। तो अभी मैं तुम लोग को नहीं लेकर जाऊंगा वहाँ पे, आई विल नॉट बोर यू विद दैट। तो अब तुम लोग क्या कर सकते, फिर तुम लोग यहाँ पे रेज्यूमे डालो ना। देखो होता क्या, लिंक्डइन को, तुम्हारे रिक्रूटर को रेज्यूमे के लिए लिंक्डइन को पैसा देना पड़ता। ये फीचर सेक्शन में अपना रेज्यूमे अपलोड मार दो पीडीएफ में डायरेक्टली, कोई सर्टिफिकेशन तुमने किया यहाँ अपलोड मार दो, क्योंकि जब वो बंदा स्क्रॉल करेगा, स्क्रॉल करते ही देखो अबाउट के बाद क्या आ रहा, अबाउट के बाद फीचर आ रहा। देखो लेट मी टेक यू बैक हियर, अबाउट सेक्शन को तो मैंने एक्सपेंड किया था, राइट। अबाउट सेक्शन तो मैंने एक्सपेंड किया था, अबाउट सेक्शन एक्सपेंडेड नहीं रहता। सीधा नीचे क्या आ रहा, फीचर आना। फीचर में रेज्यूमे का डायरेक्ट पीडीएफ डाल लो, सर्टिफिकेशन के पीडीएफ डालो, या और कुछ होगा तुम्हारे पास जो तुमको लगता कि भाई फायदा हो सकता, तो यहाँ डालो। नेक्स्ट, उसके बाद फिर आता है तुम्हारे डिटेल्स, जैसा एक्सपीरियंस। तो मैं वही वापस से देखो एक्सपीरियंस सेक्शन में वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर तुम अभी फिलहाल कहीं जॉब नहीं कर रहे, नो प्रॉब्लम, इंटर्नशिप का डालो। अब डू सम इंटर्नशिप, जब तुम जॉब के लिए जा रहे हो तो बिना इंटर्नशिप के तो बिल्कुल भी मत जाओ। कोई ना कोई इंटर्नशिप कहीं ना कहीं करो, महीना 2 महीना 3 महीना जो भी है, भले ही वहां से कोई पैसा ना मिले, फ्री में करवाना कोई काम करो, बिकॉज दैट्स द रियलिटी, विदाउट दैट यू कैन नॉट ऑप्टिमाइज योर लिंक्डइन प्रोफाइल। तो यहाँ पर वो उसकी डिटेल्स डालनी है, ठीक है। नेक्स्ट, बाकी तो फिर चीज़ें हैं, स्किल्स एंड ऑल इज देयर, स्किल्स ऑल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो तुम लोग को लगता है रिलेवेंट स्किल्स है, पुट दोज रिलेवेंट स्किल्स एंड गेट एंडोर्समेंट्स, ठीक है। यस, तो वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये है अप्रोचेबल। तो अब कवर फोटो हो गया, स्टोरी हो गया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्टोरी में डालना है, रिकमेंडेशन एंड स्किल्स वापस ने डाल दिया, कन्वर्जन ऑप्टिमाइज यानी फीचर्ड सेक्शन। फीचर्ड सेक्शन को कन्वर्जन ऑप्टिमाइज इसलिए है कि फीचर्ड सेक्शन में रेज्यूमे डाल दिया, एचआर बहुत खुश हो जाएगा कि यार यहीं से इस बंदे का रेज्यूमे मेरे को मिल गया। मेक द एचआर हैप्पी, उसको खुश करो, याद रखो कि भाई हाँ ये बंदा होशियार है। और अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन करो, यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालो, अबाउट में भी कॉन्टैक्ट डिटेल डालो, क्योंकि लिंक्डइन तुमको फ़ोन नंबर डालने नहीं देता, लेकिन यहाँ पर डाल सकते। देखो यू कैन पुट द फोन नंबर इन कॉन्टैक्ट, यहाँ फ़ोन नंबर डाल दो, यहाँ फ़ोन नंबर डाल दो, रेज्यूमे पे तो फ़ोन नंबर आएगा आएगा, 3 जगह तुमने फ़ोन नंबर डाल दिया, योर एचआर विल लव यू कि भाई यार ये बंदा बहुत भारी है, होशियार है, इसने दे के रखा है कि भाई ये लो कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पसंद आ रही ना, कॉल कर लो। यस, तो मेक इट अप्रोचेबल। तो ये 3 चीजें हैं जो करनी है लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज करने के लिए। व्हाट आर दोस 3 थिंग्स? सर्चेबल, क्लिकेबल, अप्रोचेबल। सर्च करने पे प्रोफाइल दिखनी चाहिए, किसको दिखनी चाहिए? जो तुमको जॉब दे सकता, जो इंटरव्यू दे सकता,
उसके सर्च में तुमको आना है। सर्च में आने के बाद क्लिकेबल भी बनाना है ताकि वो क्लिक करे प्रोफाइल को, और क्लिक करने के बाद तुमको अप्रोच भी कर पाए, इंटरव्यू को शेड्यूल भी कर पाए। बहुत इंपॉर्टेंट, ये 3 चीजें हैं। यस, तो नाउ दीज आर द 3 थिंग्स। नाउ लिंक्डइन तो सभी यूज कर रहे थे, बट ये जो चीजें मैंने अभी बताया, व्हाट डू यू थिंक? Is this powerful or not? If you think this is powerful, just type power in the chat window. Just type once power in the chat window if you think this information, ये जो तरीका है, searchable, clickable and approachable, if it is useful, just type power in the chat window. तो यस, ये रियलिटी है लिंक्डइन की। लिंक्डइन इज वेरी पावरफुल। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू स्टार्टअप वाला लीड्स जनरेट कर सकता है, जॉब के लिए इंटरव्यू शेड्यूल करवा सकते हैं, एवरीथिंग। लिंक्डइन के अलावा हमको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं एक्चुअली देखा जाए तो। बट वेरी फ्यू पीपल नो हाउ टू एग्जैक्टली यूटिलाइज लिंक्डइन। लिंक्डइन का एक्चुअल पावर कैसे रीप करना है बहुत ही कम लोगों को मालूम है। तो यस, तो यू विल ऑल्सो हैव दोज सुपर पावर्स आफ्टर दिस सेशन। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है नाउ कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन सबसे आसान जो है वो लिंक्डइन पे है। क्यों? क्योंकि लिंक्डइन ऑप्टिमाइज फॉर टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट। तो अगर मैं यहाँ होम पे जाऊँ मेरे, तो यू कैन सी कि जितना भी कंटेंट दिख रहा ज़्यादा करके टेक्स्ट बेस्ड है, या फिर इमेज। वीडियो बीच में लिंक्डइन पुश कर रहा था, बट इट इज नॉट गेटिंग दैट मच। तो यहाँ पे इमेज, कैरोसेल्स और टेक्स्ट, मोस्टली इट इज टेक्स्ट बेस्ड। अगर तुम लोगों ने भी लिंक्डइन पे ध्यान दिया होगा तो लिंक्डइन इज मोस्टली टेक्स्ट बेस्ड। अभी फिलहाल इमेजेस वगैरह वो भी थोड़ा सा पुश हो रहा है। यू कैन सी कि भाई जिन लोगों के रैंक कर रहे हैं उसमें इमेज वगैरह है, बट लेकिन मोस्टली जो है इट्स अ टेक्स्ट टाइप। टेक्स्ट लिंक्डइन में जितने भी पोस्ट है वो टेक्स्ट बेस्ड ही होते हैं। तो अब कंटेंट क्यों बनाना है? यूल से कि सर मैं तो कंटेंट क्रिएटर नहीं हूं, मेरे को कंटेंट नहीं बनाना है। इट्स नॉट लाइक दैट। देखो, हमारी जो रैंकिंग है, लिंक्डइन जो है ना, बेसिकली आपकी प्रोफाइल को पुश तभी करेगा जब लिंक्डइन को सामने से फायदा रहेगा। दुनिया में इट्स ऑलवेज अ विन विन सिचुएशन। अगर आप लिंक्डइन को कुछ देंगे तभी लिंक्डइन रिटर्न में आपको कुछ देगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो आप लिंक्डइन को क्या दे सकते हैं? यू कैन गिव लिंक्डइन वॉच टाइम। वॉच टाइम मतलब कि भाई यहाँ पर आ रहे हैं आप, कुछ कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, आपने कंटेंट क्रिएट किया तो आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, वो आएंगे, उसको देखेंगे, और लिंक्डइन का वॉच टाइम बढ़ेगा। है ना? आपके कंटेंट लिखने से नहीं, आपके कंटेंट लिखने से या कंटेंट क्रिएट करने से जो बाकी आपके कॉन्टैक्ट में लोग देखेंगे, वहां से लिंक्डइन को मिलता वॉच टाइम। दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग गिव, यू आर गोइंग टू गिव लिंक्डइन। जब आप लिंक्डइन को वॉच टाइम देंगे तो लिंक्डइन आपको रिटर्न में रैंकिंग देगा। ये अगर जो प्रोफाइल पे कंटिन्यूअस चीज़ें होते रहती, मतलब आप कमेंट्स कर रहे, शेयर कर रहे, कंटेंट क्रिएट कर रहे, तो लिंक्डइन को पता रहता कि ये एक एक्टिव प्रोफाइल है। लिंक्डइन डजंट वांट टू पुश डेड प्रोफाइल्स। क्यों? जब लिंक्डइन, देखो लिंक्डइन ने अभी तक तुम लोग से पैसे मांगे क्या? जो तुम लोग ने जब एज एन एम्प्लॉय, देखो लिंक्डइन में 2 तरह की प्रोफाइल रहती है, एम्प्लॉय प्रोफाइल एंड एम्प्लॉयर प्रोफाइल। एम्प्लॉय प्रोफाइल यानी तुम्हारी वाली। डिड लिंक्डइन चार्ज इवन अ सिंगल रुपी फ्रॉम यू? अभी तक जिन लोगों ने अकाउंट बनाया, 1 रुपया भी नहीं मांगता और ना आगे कभी मांगेगा। तो इससे लिंक्डइन कमाता कहाँ से? लिंक्डइन कमाता एम्प्लॉयर प्रोफाइल से। तो अगर लेट्स से डेटा बाइनरी, जैसा भी मैंने जॉब पोस्टिंग किया था, तो अब मैं वो जॉब पोस्टिंग से मेरे को कोई बंदे ढूंढने थे, तो वो बंदों के लिए लिंक्डइन में से चार्ज करेगा अच्छे प्रोफाइल्स ढूंढने के लिए। सादे प्रोफाइल तो मिल ही जाएंगे, लेकिन अगर क्यूरेटेड प्रोफाइल्स चाहिए तो वो लिंक्डइन ढूंढ के देगा। तो अब ये क्यूरेटेड प्रोफाइल्स में या रैंकिंग में ऊपर लिंक्डइन किसको मानता? उन्हीं लोगों को लिंक्डइन एक्टिव, लिंक्डइन रैंकिंग में लाता जो एक्टिव है, लिंक्डइन के ऊपर एक्टिव है। तो यू गिव लिंक्डइन द वॉच टाइम एंड लिंक्डइन विल गिव यू इन रिटर्न रैंकिंग। तो इसलिए हमको कंटेंट क्रिएट करना है। अब ये से सर मेरे को नहीं आता, मैंने कभी जिंदगी में नहीं किया। नो प्रॉब्लम। कंटेंट में यहाँ पर 2 तरह का कंटेंट रहता। सबसे पहला है फॉर योर सेल्फ। फॉर योर सेल्फ यानी तुम खुद यहाँ पे कंटेंट कुछ लिख रहे। नाउ यू डोंट हैव टू राइट समथिंग बहुत वायरल, एकदम कुछ अलग ही रिसर्च कर रहे, नई न्यूज़ डाल दे रहे, ऐसा कुछ नहीं करना है। अभी जैसा देखो, सिंपल बताता, तुम यू डिड कोर्स फ्रॉम आईआरसी, आईआरसी का तुमने कोर्स किया। लेट्स से यू डिड अ 1 मंथ कोर्स। हफ्ता हफ्ता 4 हफ्ता हुआ। आई डोंट नो द एग्जैक्ट डिटेल्स भाई क्या कोर्स हुआ और कितना था, बट अपन अज्यूम करके चलते कि भाई 1 महीना कोर्स हुआ और उसमें 4 वीक्स थे। तो जो तुमने 1 हफ्ते में किया उसकी डिटेल्स डालो कि भाई रिकैप ऑफ दिस वीक आई लर्न सो एंड सो थिंग्स। या कोई प्रोजेक्ट किया तो उस प्रोजेक्ट के बारे में डालो, या कुछ तुम फील करते अपनी फीलिंग शेयर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ नहीं कर सकते तो भाई जैसा ये है भाई, ऐश्वर्या श्रीनिवासन, इसको ऐसा शेयर मार दो, रीशेयर। कुछ नहीं जाता, रीशेयर कर दिया, तुम्हारे प्रोफाइल से शेयर हुआ, तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स को दिखना शुरू हो गया। दैट विल ऑल्सो वर्क। दैट द लीस्ट यू कैन डू इज रीपोस्ट मार दो कोई बड़े इसका,
है ना, कोई बड़ी कंपनी का AWS का जाओ, कुछ रिपोस्ट मार दो AWS पे से, डू दैट, बट आई विल नॉट रिकमेंड दैट। मैं रिकमेंड यही करूंगा कि तुम कुछ कंटेंट क्रिएट करो, ठीक है ना, अपने को वायरल नहीं करना है यहाँ पे, ना इससे कुछ कमाना है, अपने को बस अपनी प्रोफाइल एक्टिव रखनी है। लिंक्डइन को अपने को फायदा देना है, लिंक्डइन को जो चाहिए वो उसको देना है, वो है वॉच टाइम। ये है कंटेंट फॉर योरसेल्फ। कुछ नहीं आता भी इतना लिखना, सर मेरे पास टाइम नहीं है लिखने का, मेरे को आता नहीं लिखने, कोई टेंशन नहीं, AI है ना, यू हैव यू द पावर एट योर फिंगर टिप्स, है ना, हैरी पॉटर का वॉन्ड है अपने पास, फिराने का चालू, घूम। तो यूज AI से लिखो, है ना, दिख रहा लोगों को कि AI से लिखा दिखने तो कोई टेंशन नहीं है भाई, जो लोग नहीं कर रहे उनसे तो एक स्टेप आगे बढ़ चुके ना, जो कुछ ही नहीं कर रहे उनसे अगर तुमने एटलीस्ट AI का कंटेंट डाल दिया तो यू आर ऑलरेडी वन स्टेप अहेड। थोड़े दिन के बाद तुमको खुद फील होगा कि यार ये मजा नहीं आ रहा है AI के आउटपुट से, मैं थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करता है, एंड स्टिल द थिंग्स विल ग्रो। और जैसे जैसे तुमको इस पे जब मिलेंगे, इंप्रेशंस दिखेंगे, लोग इंटरैक्ट करेंगे, इट विल गिव यू मोर एंड मोर मोटिवेशन टू शेयर, ठीक है। तो अभी इंस्टाग्राम और फेसबुक पे शेयर करने की जगह, फेसबुक तो आई डोंट थिंक यू गाइज विल बी यूजिंग, जो इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करते होंगे, स्नैपचैट यूज़ करते होंगे, उसको थोड़े दिन के लिए कम यूज़ करो और लिंक्डइन पे आके वो सब हरकतें करो जो इंस्टाग्राम पे कर रहे। कुछ नहीं तो इंस्टाग्राम वाली हरकतें और स्नैपचैट वाली हरकतें लिंक्डइन पे शुरू कर दो, यहाँ डालो, मैं यहाँ गया था, चाय पिया खुलदाबाद पे, डालो यहाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखने तो तुम्हारी पर्सनल लाइफ भी, लेकिन एटलीस्ट लिंक्डइन पे कुछ कंटेंट तो क्रिएट होगा, कुछ जाएगा तो सही, है ना, खुलदाबाद की चाय तो चाय, नो प्रॉब्लम। यस, फॉर अदर्स, ये क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर अदर? फॉर अदर मतलब लेट्स से कि अगर कोई है फेमस पर्सनालिटी इन योर डोमेन, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि भाई कोई डेटा एनालिस्ट बनना चाह रहा, तो भाई या पावर एप्स है तो माइक्रोसॉफ्ट है, तो जाओ भाई माइक्रोसॉफ्ट के जो बड़े बड़े लोग हैं, माइक्रोसॉफ्ट का CEO हो गया, बिल गेट्स हो गया, ये लोग कंटिन्यूसली डालते, उसके नीचे जाके कुछ तो भी कमेंट मारो। कमेंट मारने का मतलब ये नहीं कि थम्स अप, यस, इज द थंडर, नो दैट्स नॉट व्हाट आई मेंट। वहां पर कुछ ऐसी चीज डालो जिसका कुछ मीनिंगफुल डालो, मीनिंगफुल, समथिंग मीनिंगफुल, कि भाई लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट ने कोई चीज नई लॉन्च किया तो वहाँ नीचे लिखो कि भाई हाँ ये फायदा हो सकता। यू कैन पुट, यू कैन इवन बी अ क्रिटिक एज वेल, क्रिटिक भी बोल सकते कि भाई ये प्रॉब्लम्स है, इसको सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब तुम कोई मीनिंगफुल कमेंट डालते, दैट मीनिंगफुल कमेंट्स रैंक्स, लोग उसको लाइक करते और रैंक करता। तो जैसा देखो यहाँ पर देखो, एक स्टीवन बार्लेट करके है, इसका आया था अभी, फिर नीचे चला गया बिकॉज आई डेंट सी हिम, हिज पोस्ट, वेरी फेमस, डायरी ऑफ अ CEO करके, हाँ ये देखो, साइमन सिनेक। So I follow him as a very famous personality, ये कॉर्पोरेट लीडरशिप में इज़ वेरी वेरी फेमस, बहुत फेमस बंदा है, और आई विल हाईली रिकमेंड यू गाइज ऑल्सो फॉलो हिम। इसका टेड टॉक भी बहुत फेमस है, टेड टॉक भी इसका सुन सकते जाके। तो व्हाट विल बी अ मीनिंगफुल रिप्लाई यहाँ पे, पोस्ट फॉर अदर, तो इस तरह के जो पर्सनालिटीज है, जो फेमस पर्सनालिटीज है, उनके जाके कमेंट मार देने का। तो इफ आई ओपन द कमेंट, देखो कि सबसे ऊपर कमेंट कौन सा है, ये काया शेफर्ड का है, और इसको क्यों इतने ऊपर है, क्योंकि इसको 280 लाइक्स है। तो लोग, क्या होता है कि अगर तुमने कोई मीनिंगफुल कमेंट लिखा ना, तो पीपल रेजोनेट विद दैट। रेजोनेट का मतलब वो रिलेट कर पाते कि हाँ यार हमारी भी यही फीलिंग है। क्या है? लीडरशिप इज अ डिसिप्लिन ग्राउंडेड इन ह्यूमिलिटी एंड क्यूरियोसिटी। द मोस्ट इंपैक्टफुल लीडर्स स्टे कमिटेड टू ग्रोथ, ऑलवेज लर्निंग एंड इवॉल्विंग। नो वन हैज ऑल द आंसर्स, देयर इज ऑलवेज मोर टू डिस्कवर। तो अब ये तो AI जनरेटेड टाइप ही दिख रहा, हो सकता है इसने खुद भी लिखा होगा, बट चलेगा, ये ऐसे भी चलता, कोई टेंशन नहीं, बट इट शुड बी मीनिंगफुल। कुछ मीनिंगफुल कमेंट डालो, उस पर रिएक्शंस आएंगे, रिएक्शन से तुम रैंक करेंगे। और क्योंकि लोग आके इस पर पढ़ रहे, तो लिंक्डइन को क्या मिला? वॉच टाइम, है ना, मैंने इतना पढ़ा ना, तो लिंक्डइन एल्गोरिथम इज एनालाइजिंग कि भाई समवन ओपन दिस कमेंट एंड स्टेड हियर, यहीं पे स्टे किया, मतलब ये पढ़ रहा बंदा। सो टाइप मीनिंगफुल कमेंट्स। मीनिंगफुल कमेंट नहीं आते, कोई टेंशन नहीं, अभी AI इतना एडवांस हो गया कि मीनिंगफुल कमेंट तुम्हारे लिए लिखेगा। इसका पोस्ट डालने का, पोस्ट उठा के बोलने का कि राइट अ मीनिंगफुल इमोशनल कमेंट फॉर दिस पोस्ट, वो पोस्ट एनालाइज करेगा और खुद ही लिख के दे देगा। करो, करो, टेक एफर्ट। तुम नहीं अगर मेहनत करते, आईडी है, कोई टेंशन नहीं, AI है बैठे हुए तुम्हारे लिए सब करने के लिए। यूज AI, यूज द पावर, टेक्नोलॉजी ऐसे यूज करना है ना। यस, चलो। एंड नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब ये नहीं कि अभी आज बहुत मोटिवेट हो गए और आज 10-12 पोस्ट मार दिया और उसके बाद एक महीने तक गायब, नो। यहाँ पर क्या करो, हर हफ्ते एटलीस्ट वंस अ वीक, है ना, कोई एक हफ्ते का दिन फिक्स कर लो कि भाई फ्राइडे के दिन, जुम्मे के दिन नमाज पढ़ के मैं आऊँगा, और बाद में शाम में, दोपहर में जब मैं खाली बैठता, चाय सुट्टे को जाता, उससे पहले यहाँ पे जाऊँगा, या दोस्तों के साथ शाम में जा रहा उससे पहले या उसके बाद आके एक पोस्ट मार दूंगा। दिस विल हेल्प यू, दिस विल हेल्प यू अलॉट। तो एक अपना दिन और टाइम फिक्स कर लो कि भाई ये टाइम मैं पोस्ट करूंगा, तो फिर नो मैटर व्हाट। दूसरा, किसी किसी दिन हमारा मूड होता, किसी दिन नहीं होता, तो लिंक्डइन में शेड्यूल का भी ऑप्शन है। पोस्ट इफ यू वांट टू शेड्यूल, लेट्स से इफ आई एम स्टार्टिंग अ पोस्ट, तो यहाँ पर देखो शेड्यूल का ऑप्शन है, आई कैन शेड्यूल फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। तो तुम्हारा आज मूड है, तुमने 8-10 आइडिया आ गए, 8-10 आइडिया, कोई बात नहीं, 8-10 पोस्ट मार दो, शेड्यूल मार दो, छोड़ दो, हो गया तुम्हारा 2-3 हफ्ते का काम।
चलते रहता, वो पोस्ट होते रहते, टाइम टू टाइम इट गेट्स पोस्टेड, ठीक है ना। तो मेक श्योर यू आर क्रिएटिंग कंटेंट, इसको सीरियसली लो, वेरी सीरियसली, टेक कंटेंट क्रिएशन वेरी सीरियसली। आई एम नॉट टेलिंग यू टू भाई कैमरा ले लो और बैठ जाओ और वीडियो बनाओ, नो नीड, नो नीड एट ऑल। सिर्फ क्या करो, कुछ टेक्स्ट डालो, और इमेजेस क्योंकि अभी चल रहे तो इमेजेस कैनवा से फुकट वाले इमेजेस बना लो, और नई भी इमेज डाले, टेक्स्ट भी डाले तो चलेगा। देखो ये मत देखो कि उसमें कितने लाइक आ रहे, कितने व्यू आ रहे, कितने कमेंट आ रहे, वो नहीं है मकसद हमारा। हमारा मकसद सिर्फ लिंक्डइन को बताना है कि भाई मैं एक्टिव हूँ। अगर तेरे को किसी को मेरा प्रोफाइल अगर तेरे को किसी को रेफर करना है तो भाई मैं एक्टिव लोगों में से हूँ, मेरा भाई रेफर कर ले। दिस इज व्हाट वी वांट टू टेल लिंक्डइन, दैट्स द ओनली थिंग। हमको ना इससे वायरल होना है ना कुछ होना है, सिर्फ एक्टिव रहना है, दैट्स द ओनली थिंग वी वांट टू डू। उसके बाद अगर वायरल होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, इज द आइसिंग ऑन द केक। यस, नाउ कम्स द पार्ट टीजी, जो अपन ने पहले डिस्कस किया था कि भाई ये जो टीजी है ये कैसे बनाऊं मैं। टीजी तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई हमारे टीजी ये है, टारगेट ऑडियंस, एचआर, प्रोजेक्ट मैनेजर एंड सेम प्रोफाइल पे काम करने वाले सीनियर लोग। तो इन लोगों को कैसे ढूंढना है, कैसे यहाँ पर उनको कनेक्ट करना है। सबसे पहली चीज कि भाई किसी को भी रैंडमली ऐड मत करो। आई विल टेल यू दिस कि भाई लिंक्डइन को बहुत जितना हो सका ऑप्टिमाइज रखो। शुरू में किसी को भी रैंडमली, शुरू के 400-500 लोग किसी को रैंडमली भी ऐड कर दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आफ्टर दैट, आफ्टर बियॉन्ड 500, प्लीज बी श्योर कि भाई तुम अपने टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग ही लोगों को ऐड कर रहे। नेक्स्ट, जब तुम लोग किसी को ऐड कर रहे तो मेक श्योर कि वो लोग एक्टिव है। अब जैसा फॉर एग्जांपल लेट्स से भाई मेरे को क्या करना है, जावा डेवलपर बनना है। अब आई नो कि जावा डेवलपर की जॉब्स कहाँ है, टीसीएस में है। तो अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे जावा डेवलपर डालना है। टीजी टीजी कैसे ढूंढते हैं, आई विल शो यू। तो अपन वन बाय वन जाते हैं। सबसे पहले एचआर रिक्रूटर। तो एचआर को कैसे ढूंढना है, इट्स वेरी सिंपल, जस्ट टाइप एचआर और यहाँ पे डालो पीपल। पीपल डाल दिया, यस। अब तुमको टीसीएस में जॉब लेनी है तो अब यहां पर देखो फिल्टर करके, दिस इज द मोस्ट पावरफुल, ये लिंक्डइन का जो फिल्टर है ना और ये जो सर्च है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंग इन लिंक्डइन, बहुत पावरफुल है। यहाँ मैं जा रहा फिल्टर में, फिल्टर में जाके अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे कंपनी के नाम डालना है, जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस। तो नाउ इट विल शो ओनली, 2 मिनट, हाँ, ये अभी मेरा लैपटॉप है ना, वाई इट इज डूइंग लाइक दिस, आई डोंट नो। रीसेट कर देता पूरा, लेट मी शो यू कि भाई कैसे, कितना पावरफुल है और कितना ज्यादा क्या बोलेंगे। यस, कितने लोग दिखाए इसने, जब मैंने एचआर डाला तो कितने लोग दिखाए। एक्चुअली यहाँ काउंट आता था, काउंट दिखा नहीं रहा। यस, उन्होंने हटा दिया, लोग डर जाते काउंट देख के बोल के। तो बहुत सारे पेजेस आ गए। जस्ट लेट मी चेक वंस अगेन, काउंट आ रहा क्या कहीं, काउंट नहीं आ रहा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, बट यू कैन सी कि 10 पेजेस के बियॉन्ड है, बहुत सारे लोग आ गए। लेकिन अब मेरे को ऐसा किसी रैंडम एचआर को नहीं करना है, टीसीएस के एचआर को कनेक्ट करना है। तो लेट्स मेक द फिल्टर टीसीएस। अब टीसीएस करते ही देखो, अभी भी टीसीएस में खैर बहुत लोग काम करते हैं। यहाँ पे नंबर आता था और नंबर से ना इट यूज्ड टू बिकम वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि भाई कितने कितने थे और कितने कम हो गए। तो बट नाउ द पॉइंट हियर इज कि यू कैन सी कि अब काफी इजी हो गया मेरे लिए। अब जितने भी एचआर है पूरे मेरे सामने आ गए। अब एक देखो, एक मैं बहुत क्या बोलेंगे, एक इंपॉर्टेंट चीज तुम लोग से शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर जब हम किसी को ऐड करते हैं ना तो यू नीड टू मेक श्योर कि वो लोग एक्टिव है। लेकिन एचआर में देखो, एचआर में एक्टिव कैसे या कैसे पहचानना है। एचआर में जो है एक्टिव को ऐसे पहचानना है जिसके आगे ये सिंबल लगा है। ये सिंबल क्या डिनोट करता, किसी को पता है व्हाट इज द सिंबल, ये इसके आगे क्यों आ रहा, कोई बता सकता है चैट विंडो में। ये इसके आगे ऐसा येलो कलर का आईएन क्यों आ रहा है, इसका क्या मतलब है। यस, एनीवन नोस व्हाट दिस मींस। या ये वाला जो साइन है कब आता, किसके प्रोफाइल पे आता। प्रीमियम मेंबरशिप, एब्सोल्युटली करेक्ट, प्रीमियम। लिंक्डइन प्रीमियम खरीदने के बाद आपकी प्रोफाइल के आगे ये आयन लिख के आता, मतलब ये बंदे ने तुमको ढूंढने के लिए पैसा भर रखा है लिंक्डइन में। देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, दिस इज लाइक अ गोल्ड माइन, गोल्ड माइन है ये तुम लोग के लिए। व्हाई एम आई टेलिंग दिस इज अ गोल्ड माइन, बिकॉज देखो, अरे सॉरी, व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस इज अ गोल्ड माइन। देखो टीसीएस में तो हजारों एचआर है, बराबर है, लेकिन कौन सा एचआर है
जो जॉब ढूंढ रहा, देखो टीसीएस ने इस एचआर को पैसे दिए कि भाई तू लिंक्डइन खरीद ताकि तू लोगों को ढूंढ सके। जो एचआर जॉब सीकर्स को ढूंढ रहा वो तुमको मिल गया। करो इसको कनेक्ट, करो कनेक्ट और कम्युनिकेशन शुरू करो। किसी कंसल्टेंसी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, किसी के आगे हाथ फैलाने की नीड नहीं है। डायरेक्टली लिंक्डइन तुमको उस बंदे तक पहुंचा रहा जो जॉब ढूंढ रहा, सॉरी बंदों को ढूंढ रहा, इंटरव्यू के लिए ढूंढ रहा। इसको कनेक्ट करो, बात करो और अपने लिए इंटरव्यू शेड्यूल कराओ। व्हाट मोर डू यू वांट? Isn't this powerful? Isn't this powerful? This is the most powerful thing that you get on LinkedIn. सबसे पावरफुल चीज जो तुमको लिंक्डइन में मिलती वो ये है कि तुमको डायरेक्टली वो एचआर देखने मिलता जो एचआर एक्टिवली लोगों को ढूंढ रहा। मिल गया, पहुंच जाओ। मिल गया सोना, बस निकालो और यूज करो। कनेक्ट करते आना चाहिए, बात करते आना चाहिए। Yes, if you think this is really very powerful, type a me in the chat window. Yes, if you think this is a very powerful feature, then type a me in the chat window. LinkedIn की जो मेन क्या बोलेंगे, जो सबसे पावरफुल चीज है, आई हैव शेयर दैट विद यू। यस, इफ यू थिंक दिस इज वेरी पावरफुल, टाइप अ मी इन द चैट विंडो। यस, जाग रहे नहीं जाग रहे वो भी पता चलेगा। यस, लेट मी नो वेदर यू आर एक्टिव और नॉट। टाइप अ मी इन द चैट विंडो, एम ई मी इन द चैट विंडो। Me, great, 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 great. Yes, yes, yes. अब यहां पर देखो, किसी के आगे फॉलो आ रहा और किसी के आगे कनेक्ट आ रहा। अगर फॉलो भी आ रहा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे कनेक्शन का ऑप्शन रहता। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो लिंक्डइन में मैटर करती है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो समझना है। अंडर लिंक्डइन व्हाट इज दिस फर्स्ट? फर्स्ट मीन्स जिसके साथ तुम्हारा कनेक्शन है। इज दिस एज इफ यू आर हैविंग अ फ्रेंड? जो फ्रेंड रहता फेसबुक में या इंस्टाग्राम पे जो तुम फॉलो करते, जब तुम एक दूसरे को फॉलो करते, फर्स्ट। व्हाट इज सेकंड? सेकंड मतलब तुम्हारे किसी कनेक्शन का कनेक्शन, दैट सेकंड। एंड थर्ड मीन्स नो कनेक्शंस, नो कॉमन कनेक्शंस। नाउ तुम फर्स्ट तो तुम्हारे कनेक्शन है, तुम सेकंड को रिक्वेस्ट भेज सकते, थर्ड को रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तुम लोग थर्ड को रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते। अगर डायरेक्टली किसी थर्ड को रिक्वेस्ट भेजना है तो देन यू नीड टू हैव देयर फोन नंबर और समथिंग इन कॉमन, ताकि लिंक्डइन पता कर सके, क्योंकि लिंक्डइन पता है लोग स्पैम करते। नाउ लुक एट दिस, जितने भी एचआर है, आई कैन गारंटी यू कि कोई मेरे प्रोफाइल पे कोई ऐसा एचआर नहीं होगा जो थर्ड होगा। ऑलमोस्ट क्या है कि भाई एट डेटा बाइनरीज, मतलब मैं जब से आई हैव बिल्ड माई लिंक्डइन प्रोफाइल बैक इन 2010-11, मतलब 15 साल से मैं इसको यूज करता हूँ। इट्स वेरी ओल्ड प्रोफाइल एंड आई एम ऑप्टिमाइजिंग दिस फ्रॉम वेरी लॉन्ग। तो मैंने 10-15 सालों में अपना एक एचआर नेटवर्क बना रखा है, कंप्लीट एचआर नेटवर्क। तो ऑलमोस्ट इंडिया की, सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा मैं, इंडिया की जितने भी कंपनीज है उनके हर एचआर, ऑलमोस्ट सभी एचआर मेरे कॉमन कॉन्टैक्ट्स में हैं। आई हैव ऑलमोस्ट 8,000 के आसपास कनेक्शंस। यू कैन सी 8,792 फॉलोअर्स एंड कनेक्शंस भी कुछ उसी के आसपास है। ठीक है ना, फॉलोअर्स एंड कनेक्शंस आर ऑलमोस्ट सिमिलर ओनली। फॉलोअर्स यानी जो लोग फॉलो कर लिए लेकिन कनेक्ट नहीं किए। तो 8 से 9 हज़ार के आसपास कुछ कनेक्शंस है, समझ लो यही नंबर पकड़ के चल लो। तो दीज मेनी कनेक्शंस आर देयर। नाउ जैसा मैंने बताया कि तुम लोग थर्ड को रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते, सेकंड को रिक्वेस्ट भेज सकते। एंड यू कैन सी ऑल ऑफ दीज एचआर्स आर माय सेकंड, आर माय सेकंड। मेजॉरिटी मिल जाएंगे तुमको सेकंड में। तो इफ यू कनेक्ट विथ मी, तुम लोगों ने अगर मेरे से कनेक्ट किए तो ये 8,000 लोग तुम्हारे सेकंड बन जाते। है क्या नहीं पावरफुल चीज? ये पूरे 8,000 लोग, इफ यू कनेक्ट विथ मी, ये 8,000 लोग तुम्हारे सेकंड बन जाएंगे। एंड आई एम ओपन फॉर कनेक्शन, है ना। आई विल एक्सेप्ट योर कनेक्शन रिक्वेस्ट। जस्ट मैं आई विल टेल यू हाउ टू कनेक्ट विथ मी सो दैट आई विल एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट। क्योंकि रैंडमली आते थे, कभी बैठे बैठे भी किसी ने डाला और कंटिन्यू मेरे पास आते रहते। हर एक को मैं एंटरटेन नहीं करता या हर एक को कनेक्ट नहीं करता, क्योंकि इस पर भी लिमिटेशंस हैं कि हाउ मेनी कनेक्शंस यू कैन हैव ऑन लिंक्डइन। इसके जैसा नहीं है कि मिलियनों में जा रहा। फॉलोअर पे कोई लिमिट नहीं है, कनेक्शंस पे लिमिट है, रिमेंबर दैट। तो आई विल कनेक्ट विथ यू, लेकिन मेरे से कनेक्ट करते ही 8,000 लोग तुम्हारे सेकंड बन जाएंगे। एंड लेट मी टेल यू, ये 8,000 में से 5 से 6 हज़ार लोग, 6,000 भी नहीं, 6 से 7 हज़ार लोग आईटी से रिलेटेड लोग हैं, और ऑलमोस्ट इंडिया के सभी आईटी कंपनीज के लोग हैं।
तो तुमने मेरे को कनेक्ट किया, तो आई कैन गारंटी यू कि ये जितने भी है तुम्हारे लिए तुम्हारे सेकंड बन जाएंगे, एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू कनेक्ट। अब नेक्स्ट, जब तुम कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहे, तो हाउ एग्जैक्टली डू यू शुड यू सेंड योर कनेक्शन रिक्वेस्ट? यस, यहाँ आ गए अपन। तो जब हम कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, जैसा फॉर एग्जांपल लेट्स से ये अमय तुम्बुडे, इसको मेरे को कनेक्ट करना है, एचआर ये टैग है, ठीक है, तो कनेक्ट, जैसे ही मैंने कनेक्ट पे क्लिक किया, देखो लेट मी शो यू, कैंसिल करना पड़ेगा, डायरेक्टली कनेक्ट भेज दिया इसने, ऐसे नहीं होना चाहिए। लेट मी शो यू हाउ एग्जैक्टली द राइट वेज। यहाँ से मत करो, एक्चुअली पहले यहाँ से देता था, अब नहीं दे रहा। गो ऑन द पर्सन प्रोफाइल एंड देन यहाँ पर कनेक्ट पे क्लिक करो। प्रोफाइल पे जाने के बाद क्यों ऐसे बोल रहा हूँ मैं, वो बताता। जैसे ही अब मैंने कनेक्ट पे क्लिक किया ना, तो अब अलग आ रहा, देखो, add a note to your invitation, personalize your invitation to Amay Tumde by adding a note. This is very important. तुम खाली ऐसे कनेक्ट मार देंगे तो इट विल लुक लाइक अ जनरल स्पैम रिक्वेस्ट और एनी रिक्वेस्ट, क्योंकि अमय तुमड़े डजेंट नो मी और डजेंट नो यू। तो फिर तुम जब कनेक्शन रिक्वेस्ट डालेंगे तो वाई शुड अमय एक्सेप्ट योर कनेक्शन रिक्वेस्ट? तो यहाँ पर तुमको एक ऐड नोट करके करना है, ऐड नोट। वंस यू डू ऐड नोट, यहाँ पर एक ऑप्शन दे रहा 200 कैरेक्टर का, जहाँ तुम डाल सकते अपने बारे में ना। यहाँ डायरेक्टली मत लोड, ये कटोरा लेके सामने चल जाओ, अरे भाई मेरे को जॉब दे दे। नो, दिस इज नॉट द राइट अप्रोच, ठीक है ना, ये सही अप्रोच नहीं है। यहाँ पर ऐसा कुछ डालो जो इस बंदे के लिए इंटरेस्टिंग है। हो सकता है यहाँ पर इसने कुछ ऐसी चीज कर रखी है जिसकी तुम तारीफ कर सकते, या कोई ऐसा उसने डाला जिसके बारे में तुम बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसने यहाँ पे क्या डाल रखा है, अच्छा ये वॉक इन के बारे में है, इंटेलिजेंस स्वदेशी 4G लोकल नेटवर्क, TCS इन पार्टनरशिप विद BSNL आर बिल्डिंग द फ्यूचर ऑफ इंडियन टेलीकॉम। तो अमय ने क्या किया, इसको रिपोस्ट किया, मतलब अमय लाइक्स दिस रिसर्च डन बाय और इनोवेशन डन बाय। तो यहाँ पे तुम डाल सकते कि सी आई एम डूइंग समझो, ठीक है, वो तो झूठ हो जाएगा, तो अपन कुछ सही है बोल सकते कि भाई आई फाउंड दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज इंडियन, अवर ओन इंडियन बिल्ड प्रोजेक्ट, आई वुड लाइक टू नो मोर, कैन वी कनेक्ट? ऐसा शेयर्ड इंटरेस्ट के ऊपर से एक नोट डालो, कनेक्शन रैंडमली मत डालो, हे आई वुड लाइक टू कनेक्ट, नॉट करेक्ट। हे आई कैन यू गिव मी अ जॉब, नॉट करेक्ट, है ना, डायरेक्ट लोटा लेके नहीं जाने का सामने। तो नोट में कुछ ऐसा डालो जो उसके लिए इंटरेस्टिंग हो, उसका इंटरेस्ट जागे तुमको कनेक्ट करने के लिए। शॉर्ट होना चाहिए 200 कैरेक्टर में, नहीं आता कोई टेंशन नहीं, एआई है ना। यस, एआई इज देयर, टेल एआई कि भाई दिस इज द प्रोफाइल, ये प्रोफाइल का यूआरएल उठाओ और बोलो कि ये बंदे के इंटरेस्ट पता कर भाई। एआई इंटरेस्ट पता करेगा और बोलेगा, उसको बोलेगा 200 कैरेक्टर का एक बना के दे, क्रिएट अ 200 कैरेक्टर रिक्वेस्ट। और उसने 200 में नहीं बनाया तो तुम थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करके 200 में डालो। दिस इज हाउ यू कनेक्ट। रैंडमली मार दिए रिक्वेस्ट, दैट्स नॉट द राइट वे। रिमेंबर, ऑलवेज कनेक्ट समवन विद दिस रिक्वेस्ट। अगर मेरे को किसी से कनेक्ट करना है, जनरली मेरे को सामने से ही आ जाते हैं मेजॉरिटी टाइम्स, बट समटाइम्स व्हेन आई ट्राई टू कनेक्ट विद सम पीपल, जिससे सपोज लेट्स से सम कोई मेरा क्लाइंट है, हमको लग रहा है यहाँ पोटेंशियल, हमको कुछ मिल सकता प्रोजेक्ट, तो एट दैट टाइम ऑलवेज आई कनेक्ट विद दैट कंसर्न पर्सन विद अ नोट, एंड द नोट डजंट नेवर सेज अबाउट द डायरेक्ट अप्रोच। मैं कभी भी उसको ये नहीं बोलता कि हम आपको कुछ देना चाह रहे हैं। आई जस्ट टॉक अबाउट हिज इंटरेस्ट, आई जस्ट गो ऑन द प्रोफाइल, चेक हिज प्रोफाइल, देखता इंटरेस्ट क्या है और इंटरेस्ट के बारे में। दैट्स हाउ यू स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशन। तो कॉन्वर्जेशन ऐसे शुरू करो यहाँ से और ये भेजो, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ये नोट का याद रखो, नोट ऐसे देना है। नेक्स्ट, प्रेफर पीपल हु आर एक्टिव। ये कैसे पता चलेगा? तो एचआर तो पता चल जाता एक्टिव कैसे है, अब जो एचआर नहीं है वो कैसे पता चलेगा? तो लेट से यहाँ पर मेरे को अगर TCS में, अब मेरे को क्या चाहिए, मैनेजर, तो मैं यहाँ डाल देता प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर इन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये आगे देखो प्रोजेक्ट मैनेजर। नाउ सी वेरी इंपॉर्टेंट, कई सारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स मेरे सेकंड है। यस, लाइक आई सेड, तुम्हारे पास मेरी प्रोफाइल जो है ना, आई एम नॉट ट्राइंग टू बोस्ट अबाउट इट, दिस इज समथिंग, ये खतरा खतरा मैंने पिछले 10-15 सालों में बिल्ड किया है, ऐसे नहीं कि अभी हुआ है। जो रियलिटी है, रियलिटी है, आई बिल्ड इट, है ना। एक एक क्या बोलेंगे, एक एक ईंट रख रख के पाई पाई जोड़कर पूरी प्रोफाइल बनाई है। बट तुम लोग के लिए आसान है, कनेक्ट करो, 8,000 लोग तुम्हारे सेकंड, और तुम्हारे लिए कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना आसान। अभी अगर थर्ड को तुम नहीं भेज सकते रिक्वेस्ट, ये याद रखो, थर्ड को तुम कनेक्ट नहीं कर सकते, तो ट्राई टू कनेक्ट विद पीपल लाइक मी। ऐसा नहीं बोलूंगा मैं अकेला ही, मेरे जैसे और भी कई लोग हैं। ट्राई टू फाइंड पीपल लाइक मी, जो जिनके कनेक्शंस हैं, टेक्निकल कनेक्शंस हैं, और फिर उनसे कनेक्ट करो, उनके कनेक्शंस तुम्हारे सेकंड बन जाते हैं, ठीक है। यस, तो अभी प्रोजेक्ट मैनेजर है। अब ये प्रोजेक्ट मैनेजर एक्टिव है नहीं है, कैसे पता चलेगा? वेरी इजी टू नो हाउ वेदर और नॉट द पर्सन इज एक्टिव ऑन लिंक्डइन। जाकर देखो इसके एक्टिविटीज, इसकी कोई एक्टिविटी नहीं है, मतलब ये बंदी ने सिर्फ एक बना के रखा हुआ है जॉब के लिए, कोई एक्टिविटी यहाँ पर नहीं है।
हाँ नहीं है एक्टिविटी, लेकिन कब है? 1 मंथ एगो। उससे पहले 9 मंथ्स, मतलब 1 महीना पहले लिंक्डइन खोला था, उससे पहले 9 महीना पहले लिंक्डइन खोला था, तो नॉट अ वेरी एक्टिव पर्सन। तो ठीक है, कर सकते, बट नॉट वेरी एक्टिव। देखते हैं प्रभा कुमारी एक्टिव है क्या? यस, प्रभा कुमारी इज वेरी एक्टिव। यू कैन सी रिसेंटली प्रभा कुमारी ने रीपोस्टेड दिस, लेकिन वो भी कब के हैं? ऑल पोस्ट पता चलेगा कब कब किया इसने। 5 मंथ्स अगो है, 7 मंथ्स अगो है। ये भी काफी दिनों से इसने चेक नहीं किया। तो यस, तो जनरली मैनेजर्स वगैरह इतने एक्टिव नहीं रहते, क्योंकि लोग जनरली क्या होता, लिंक्डइन पे तभी आते जब उनको जॉब चाहिए, और बहुत सी बार वो पोस्ट वगैरह करते भी नहीं। हैजंट पोस्टेड एनीथिंग येट। तो यहाँ पर तुमको क्या है, थोड़ा गट फीलिंग से भी जाना पड़ेगा, देख कर कि भाई क्या है क्या नहीं प्रोजेक्ट मैनेजर में, लेकिन ऐड करो, कुछ लोगों को ऐड करो और फिर कनेक्ट करने की कोशिश करो, हो गया तो हो जाएगा। और लास्ट है सीनियर पोजीशन, तो अपन यहाँ पे जावा डेवलपर डाल दो वापस। जावा डेवलपर। पीपल एंड देन टीसीएस। तो ये टीसीएस के डेवलपर्स आ गए, तो इसमें से तुम लोग को कौन सा लेना है? सीनियर वाला। जाके इनका एक्सपीरियंस देखो, जो सीनियर है उनसे कनेक्ट करो। जो बेचारा जूनियर है वो खुद अभी अभी ज्वाइन करा, वो तुमको क्या रेफरेंस करेगा? तो यस, तो ये तुम्हारा टीजी है, ये तुमको टीजीए से बिल्ड करना है। एचआर तो ऐसा कंपनीज बना लो कि भाई कौन से कंपनीज में तुमको जॉब लग सकती, उन कंपनीज के एचआर को ढूंढो, कनेक्ट करो, मैनेजर्स को ढूंढो, कनेक्ट करो, सिमिलर पोजीशन वालों को ढूंढो जो थोड़े सीनियर पोजीशन पे, उनको कनेक्ट करो, और ये ऑडियंस बनाओ। ये तुमको अगले 1 महीने तक करना है, हर दिन। हर दिन ये 1 महीने तक करना है, तुम्हारा 1 महीने में पूरा तुम्हारा टारगेट ऑडियंस रेडी हो जाएगा। और देखो, कैसा नहीं है कि भाई आज तुमने लिंक्डइन मेरे से ऑप्टिमाइजेशन सीखा और कल के कल तुमको रिजल्ट मिल गया, ये नहीं होने वाला। रिमेंबर दैट, ये लिंक्डइन बनाना एक झाड़ लगाने जैसा है। आज मैंने तुमको सिखाया बीज लगाना, अब तुम बीज लगाएंगे, उससे झाड़ आएगा, फूल आएंगे, और फिर फल आएगा, और फिर तुम वो फल को खाएंगे। तुम ये नहीं बोल सकते कि आज और कल है ना ओवरनाइट सक्सेस, ये नहीं होता। दिस इज नॉट द रियलिटी। तो अभी क्या हो गया है, सोशल मीडिया के दौर में जेंजी को ऐसा लगता कि भाई बिल्कुल आज अगर हुआ तो कल मेरे को रिजल्ट दिखना, नहीं होता। इसीलिए मैं घर जितने भी आते जेंजीज खासतौर से उनको बोलता, भाई घर में जाओ और एक पौधा लगाओ सीड से, खासतौर से सीड से, सो दैट यू लर्न पेशेंस। आई टीच माई किड्स टू डू दिस, कि भाई ये झाड़ लगाओ। क्यों? ये तुमको पेशेंस सिखाता है, एक लाइफ स्किल सिखाता। दिस इज अ लाइफ स्किल विच इज मिसिंग। हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में जाएंगे तो हर घर में ये होता था, सबके पास खेती होती थी, ये होती थी, तो ये आइडिया था। अब लोगों के पास एक बेसिक लाइफ स्किल मिसिंग है, दैट इज पेशेंस। ये चीज पेशेंस सिखाती। तो यहां पर भी पेशेंस लगेगा। 1 महीना तो सिर्फ टारगेट ऑडियंस बनने में ही चला जाएगा, उसके बाद फिर हल्लू हल्लू तुमको कुछ रिजल्ट्स दिखने शुरू होंगे। तुमने कंटेंट क्रिएट किया लगातार 1 महीने तक, उसके बाद कहीं तुम्हारे प्रोफाइल में कुछ ट्रैक्शन आएगा। एक दिन में कल पोस्ट डाला और परसों मेरे को जो इंटरव्यू कॉल आ जाना, दैट्स नॉट द रियलिटी। कि भाई आज मैंने ऑप्टिमाइज किया, कल ही मेरे को कॉल आ गया, दैट्स नॉट द रियलिटी। तुमको मिनिमम महीना 2 महीना इसके पीछे काम करना पड़ता है। इतना टाइम किसके पास है? यस, देना पड़ेगा टाइम इतना, वरना नहीं होगा। रिमेंबर दैट। ठीक है, यू विल हैव टू गिव इट टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट, नेवर सेंड मोर देन 100 रिक्वेस्ट। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड लिंक्डइन जेल। लिंक्डइन जेल करके कॉन्सेप्ट है। लिंक्डइन जेल तब होता जब तुमने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट भेज दिए, अलग अलग लोगों को बहुत ज्यादा, अगर रिक्वेस्ट 100 से ज्यादा रिक्वेस्ट भेज दिए और उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, देन दे पुट यू इन लिंक्डइन जेल। लिंक्डइन जेल में तुम फिर अगले 10 15 दिन 20 दिन के लिए किसी को कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते। हाँ, नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, लिंक्डइन जेल। यस, तो इफ यू डोंट वांट टू गो इनटू दैट लिंक्डइन जेल, मेक श्योर दैट द रिक्वेस्ट यू सेंड इज बिलो 100। तो अभी क्या करना, समझो आज तुमने ऑप्टिमाइजेशन शुरू किया, तो आज सिर्फ 10 रिक्वेस्ट भेजो, कल 20, परसों 30, 40, 50, ऐसा करके 100 तक जाओ, और उसके बाद फिर 100 के ऊपर मत जाना। 100 मतलब कल ही 100 भेज दिया, ऐसा मत करो, ठीक है ना? आज 10 से शुरू करो, 10, 20, 30, 40, 50, और ऐसे करते करते 100। अभी पहले तो मेरे को भेज दो, मैं एक्सेप्ट करते ही मेरे 8,000 कॉन्टैक्ट तुम्हारे सेकंड, है ना? तो तुम्हारे लिए एचआर मैनेजर सब सेकंड बन जाएंगे, एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। ठीक है, चलो नेक्स्ट। यस, लिंक्डइन सर्च तो मैंने बता दिया तुमको, यूज लिंक्डइन सर्च। लिंक्डइन सर्च आ गया, तो दिस इज हाउ यू बिल्ड द कनेक्शन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, कि भाई नेटवर्किंग कैसे करना है, हाउ टू डू नेटवर्किंग, हाउ टू डू नेटवर्किंग ऑन लिनक्स। यस, तो अभी कैसा है, आई एम ऑन माई होम, तो माई किड्स ऑलवेज रोम अराउंड हियर एंड देयर, सो चलो, नो नो वरीज।
तो ये साइंस ऑफ नेटवर्किंग ऑन लिंक्डइन कि भाई नेटवर्किंग कैसे करना है। जब हम लोग कनेक्ट कर रहे किसी को भी, तो हाउ एग्जैक्टली डू वी कनेक्ट, एंड देन बहुत सी बार होता क्या, देखो जब मैं ये वर्कशॉप लेता उसके बाद जो सबसे पहला क्वेश्चन या सबसे पहली क्वेरी जो स्टूडेंट्स की आती, वो ये है कि सर मैं ना कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज तो रहा, कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। तो उसका पहला इलाज है जो मैंने बताया कि भाई अगर तुम ऐसा खाली कनेक्ट मार दे रहे, दैट वोंट हैपन, एड अ नोट। नोट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, एक नोट होनी चाहिए, एंड नोट शुड हैव अ ह्यूमन टच। मेरे को जॉब दे रहे भाई, मेरे को इंटरव्यू दिला दे रहे भाई, दैट विल नॉट वर्क। इट शुड हैव अ ह्यूमन टच। ह्यूमन टच के साथ एक नोट डालो। क्यों? देखो अभी यहाँ पे क्या है, किसी ने भी रिक्वेस्ट भेजा हुआ है, देखो यू गॉट सम रिक्वेस्ट। तो देखो दिस इज हाउ इट इज टू बी सेंट। हाई, आई एम इम्प्रेस्ड बाय योर लीडरशिप इन द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन टेक स्ट्रेटजीज, आई वुड लाइक टू कनेक्ट एंड लर्न फ्रॉम मोर फ्रॉम योर जर्नी। एक तला करके इसने भेजा, देखो कुछ भी रिक्वेस्ट नहीं भेजा, बट इस बंदे ने रिक्वेस्ट भेजा, तो मेरे को इमीडिएटली पता चल गया, एंड ही इज ट्राइंग टू डू, जैसा इसने स्टडी किया और उसके हिसाब से यहाँ पर ये देखो एक रिक्वेस्ट भेजा। दिस इज द राइट वे ऑफ सेंडिंग अ रिक्वेस्ट। ये इसलिए बता रहा हूँ मैं कि जब किसी के बंदे के पास इनविटेशन आएगा तो इस तरह दिखेगा। तो जब इसमें यहाँ कुछ नहीं दिख रहा और यहाँ पर ये दिख रहा, तो इमीडिएटली मेरे को पता चल जाता व्हाई दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कनेक्ट विथ मी। और अगर ये रिलेट कर गया तो मेरे लिए बहुत ईजी है इसको इमीडिएटली एक्सेप्ट करना। इट्स वेरी इजी फॉर मी टू एक्सेप्ट। और देखो इमीडिएटली यहाँ पे चैट विंडो भी खुल गया। दिस इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल। ये देखो इमीडिएटली खुल गया, जैसे ही मैंने कनेक्ट किया ना, चैट विंडो खुल गया ना। व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? देखो ये सब करके इसलिए तुमको प्रैक्टिकली दिखाना, ताकि तुम जिसको भेज रहे रिक्वेस्ट, उसके एंड पे, उसके लिंक्डइन पे क्या हो रहा वो तुमको दिखे। द मोमेंट आई accepted this, it opened a chat window over here. This is where things become very interesting. अब क्या है, अब लेट्स से सौदागर आमिर इज लुकिंग फॉर अ जॉब, तो इसने नेक्स्ट क्या करना चाहिए, इसने स्टार्ट करना चाहिए अब एक कन्वर्सेशन। शुड स्टार्ट अ कन्वर्सेशन विथ मी, एंड दैट कन्वर्सेशन शुड लीड टू द इंटरव्यू कॉल। मतलब तुमको बेसिकली क्या करना है यहां से, लेट्स से कि भाई अपन सौदागर, लेट्स से आई एम सौदागर, एंड सौदागर इज ट्राइंग टू गेट्स अ कॉल फ्रॉम मी, मतलब मेरे पास उसको एक इंटरव्यू कॉल शेड्यूल करना है। तो अब सौदागर का एम ये होना चाहिए कि भाई ये मेरे को एक फोन कॉल पर ला सके, मेरा नंबर वो ले सके या अपना नंबर शेयर कर सके। मोस्टली ये बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि भाई एक कॉल शेड्यूल हो जाए, है ना। याद रखो तुमको बंदे को कॉल पे लेकर आना ही, और एम इज टू गेट दैट पर्सन टू गेट ऑन अ कॉल विथ यू। इट कैन बी अ गूगल मीट, इट कैन बी अ जूम कॉल, इट कैन बी अ फोन कॉल। बेस्ट केस सिनेरियो की फोन कॉल। तो आप कैसे ला सकते हैं? डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते हे चलो अपन कॉल पे बात करते, डजेंट मेक एनी सेंस। What you need to do is you need to once again continue the conversation in the interest, वो साइड में इंटरेस्ट। जैसा अब लेट्स से फॉर एग्जांपल सौदागर है, तो अब ये मेरे को बोल सकता कि सी आई रियली लाइक व्हाट यू आर डूइंग इन एआई, आई हैव आल्सो क्रिएटेड अ प्रोजेक्ट, आई वुड लाइक टू शेयर द डिटेल्स विथ यू, आई वुड लाइक सम गाइडेंस फ्रॉम यू। तो अगर वो इस तरह का मैसेज डालूंगा तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू रिप्लाई टू दैट कि भाई यस, है ना। अब वो रैंडमली डालेगा हे आसिम कुड यू शेयर मी योर नंबर, एंड फिर मैं तो बैकफुट पे चला जाऊंगा सीधा कि भैया कनेक्ट करते नंबर मांग रहा, क्यों मांग रहा नंबर? नहीं। तो यू डोंट वांट टू पुट द पर्सन ऑन द बैक फुट, तुमको उसको फ्रंट फुट पे लाना है। फ्रंट फुट पे लाने के लिए क्या है, उसके इंटरेस्ट के बारे में बात करो। एचआर है तो बात करो कि भाई सी, कि भाई उसके एक्टिविटीज देखो, पोस्ट देखो, उसका इंस्टाग्राम प्रोफाइल जाके सर्च करो, देखो वो क्या करता, कहीं घूमता करता तो बोलो आई एम ऑल्सो ट्रैवल एंथुजियास्ट, आई सॉ सम पोस्ट दैट यू डिड, आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू गो देयर, आई वुड लाइक टू नो मोर, आई वुड लाइक टू स्टार्ट, आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट इट फ्रॉम यू, ऐसा वैसा जो भी है। या फिर एआई को बोलो भाई क्रिएट सम कॉन्वर्जेटिव कॉन्वर्जेशन इन दिस इंटरेस्ट फील्ड, ऐसा करके डालो, वो तुमको बताएगा। तो ये कॉन्वर्जेशन शुरू करो। कॉन्वर्जेशन शुरू होने के बाद सटल वे में कॉल पे लेकर जाने की कोशिश करो। तुम्हारा एम ये रहेगा कि इस बंदे को तुमको कॉल पर लाना है, जो तुमको इंटरव्यू दिला सकता उसको कॉल पे लेकर आना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। अब अब ये अगर कनेक्शन रिक्वेस्ट डाल दिया तुमने, यहाँ पे मैसेज डाल दिया, है ना, हे जैसा इसने मेरे को डाल दिया मैसेज, hey I saw you are doing something in AI and I have created so and so project, I would like some guidance from you, और मैंने मार दिया इग्नोर, है ना, आई जस्ट इग्नोर दैट पर्सन। तो अब सौदागर क्या करे कि वो मेरा इंटरेस्ट ले सके, इसके लिए आई हैव क्रिएटेड अ माइंड मैप फॉर यू। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई हैव स्टॉप माई स्क्रीन शेयर, डोंट वरी, आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीन टू give you details how exactly it can be done. Let me log into my mind map.
Just a second, I will be sharing the screen in a moment. Let me log in. Actually, I forgot to log in before the workshop. I made everything ready, but this mind map I forgot to start. Yes, so this is a multi-touch point follow-up mechanism that I have built. And this mechanism will help you get uh, some conversation started from your intended पर्सन जिससे भी तुम ये कन्वर्सेशन शुरू करना चाह रहे हो उसके साथ, ठीक है। तो सबसे पहले कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना है, कनेक्शन रिक्वेस्ट पर्सनलाइज नोट के साथ भेजना है। अगर बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन जो भी है। अब क्या हुआ कि कनेक्शन एक्सेप्ट तो कर लिया लेकिन तुम्हारा रिप्लाई नहीं दे रहा। रिप्लाई अगर नहीं दे रहा तो तुम लोग वहाँ पर एक थैंक यू मैसेज, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग करके वहाँ पे एक मैसेज डाल सकते हैं और उसके अलावा फिर से कोई मैसेज फॉलोअप के लिए डाल सकते हैं। उसके बाद अगर उसने फिर से रिप्लाई नहीं किया उस बंदे ने तो क्या करना है, तो तुमको जाना है उसके There must be some technical issue at sir's end. I'll just connect with him with your call. I guess he's coming back. hello. Is the Yes, voice yes, audible and the screen visible? Yes, there was a yes, small yes, network glitch here. तो होता yes, थोड़ा सा yes. जूम पे कभी कभी it gets glitched. So yes, as I was speaking earlier कि यहाँ पर कंटेंट के साथ एंगेज क्यों करना है। कंटेंट के साथ एंगेज इसलिए करना है क्योंकि द मोमेंट यू एंगेज विद द कंटेंट यू कैन सी नोटिफिकेशन में सबसे ऊपर आ गया। देखो अवेश खाजी कमेंटेड ऑन माय पोस्ट, तो यहाँ अवेश खाजी का नाम मेंशन होके आ गया। तो अब ये मेरे माइंड में चला गया कि भाई हाँ अवेश खाजी नाम का कोई बंदा है जो यहाँ पे मेरे कंटेंट के साथ एंगेज करने की कोशिश कर रहा। अब यहाँ पे दिखा कि एक अवेश खाजी मैसेज भी कर रहा, अवेश खाजी यहाँ कमेंट भी कर रहा। तो मेरे को क्या है कि भाई ये ध्यान में आएगा कि यार बंदा इतना एफर्ट लगा रहा, देख लेते क्या बोल रहा, आई विल गो एंड रिप्लाई। तो मतलब हमने कॉन्वर्जेशन के लिए फोर्स किया। अब कोई बहुत ही डेंजर रहता नहीं, कमेंट के बाद भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तब क्या करना है तुमको। तब उसके बाद अगर उसने मान लिया मतलब कन्वर्सेशन शुरू कर दिया तो वेल एंड गुड। कन्वर्सेशन अगर शुरू नहीं किया तो व्हाट यू शुड डू, यू शुड आफ्टर दैट एंडोर्स 3 स्किल्स। जाओ उसके स्किल्स एंडोर्स कर दो। क्यों, क्योंकि द मोमेंट यू एंडोर्स द स्किल्स वंस अगेन दैट विल गो ऑन टॉप ऑफ द नोटिफिकेशन। तो अब क्या हो जाएगा, पहले दिखेगा कि भाई मैसेज आ रहे है ना, मैसेज आ रहे, मैसेज के बाद दिखेगा कि भाई कमेंट मार रहा, कमेंट के बाद दिखेगा कि एंडोर्स मार रहा। तो देन द पर्सन विल गेट कि भाई उसको आइडिया आ जाएगा कि भाई द पर्सन इज टेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। तुम स्पैम नहीं कर रहे। देखो क्या होता है, लोग हेलो एनी अपडेट्स क्वेश्चन मार्क, अरे यू डिडंट रिप्लाई। देखो इससे ना बंदा चिढ़ जाता। मैसेज में कंटिन्यूअसली अगर तुम फॉलो अप लेंगे ना तो द अदर पर्सन विल गेट इरिटेटेड कि क्या लगाया भाई रोज उठ के मैसेज डाल रहा। So don't irritate the person by continuously following up in the chat itself. चैट में continuous follow up मत करो। follow up इस तरह से लो कि भाई वो notification में दिखे
तुम्हारी जेन्युइनिटी दिखे. इफ यू आर कमेंटिंग ऑन द पर्सन, दिस मीन्स यू आर टेकिंग टाइम आउट, रीडिंग द एंटायर पोस्ट एंड देन कमेंटिंग ऑन इट. तो फिर वो बंदे को लगेगा कि नहीं यार एफर्ट ले रहा है. एंडोर्स कर दिया तुमने स्किल, 3 स्किल, तुमने उसको इरिटेट नहीं किया, यू एंडोर्स 3 स्किल्स एंड एवरीवन नोज द इंपॉर्टेंस ऑफ एंडोर्समेंट्स. वो फिर मजबूर हो ही जाएगा तुमसे बात करने पे. और फिर जैसे ही उसने बात शुरू किया, उसको अपने को कॉल पर लेकर आना है. कोशिश ये करना है अगला इमीडिएट मैसेज नहीं, ला भाई नंबर दे, नो. थोड़ा सा ह्यूमनली. हम जब किसी को, लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम शादी में गए, किसी नए बंदे से मिले, तो हाँ अस्सलाम वालेकुम और भाई क्या हाल है, लो फोन नंबर दो. इज दिस हाउ वी टॉक? नो. जब हम सामने सामने इस तरह से बात नहीं करते तो फिर इधर क्यों ऐसी बात करनी है हमको? जैसा हम किसी को आमने सामने बात करेंगे, अगर वैसे ही अगर बात यहाँ पे करेंगे तो इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ इमोशनल टच, ह्यूमन टच. तो मैसेजेस में भी बात उस तरह से करो कि भाई वो एक ह्यूमन टच दिखाए. ट्राई टू स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशन. ठीक है, चल. अब इसके बाद भी अगर वो बंदा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो छोड़ दो, फिर ही इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड. अपना टाइम एनर्जी वेस्ट मत करो. वी आर अ 1.4 बिलियन लोगों का पॉपुलेशन, एक बंदे के पीछे इतना टाइम पास करने का कोई मतलब नहीं बनता. ठीक है ना? और हर कंपनी में सिर्फ एक एचआर या एक मैनेजर या एक डेवलपर या एक वो पोजीशन वाला बंदा नहीं होता, मल्टीपल होते हैं और मल्टीपल कंपनीज हैं. तो यस, तो ये एक इम्पॉर्टेंट माइंड मैप है जो तुम लोग यूज़ कर सकते किसी से भी इन कॉन्वर्जेशन शुरू करने के लिए. बिल्कुल भी मैसेजेस में स्पैम मत करते जाओ और हेलो यू डिडंट रिप्लाई क्वेश्चन मार्क, ये प्लीज़ मत करो. इससे सिर्फ और सिर्फ सामने वाला इरिटेट हो जाता. ये ऐसी इरिटेट करने वाली हरकतें प्लीज़ मत करना. उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा और उल्टा नुकसान ज़्यादा होगा. ठीक है ना? तो यस, टू यूज़ दिस माइंड मैप टू गेट द फॉलो फ्रॉम योर ऑडियंस. नाउ टाइम से थोड़ा सा हम लोग ऊपर आ गए, इसको फटाफट फिनिश कर लेते हैं. यस, फॉलोअप्स मैंने बता दिया. नेक्स्ट है हाउ टू अप्लाई ऑन लिंक्डइन. लास्ट जब तुम अप्लाई कर रहे तो अप्लाई करने का एक लास्ट पॉइंट है, वो बता देता हूँ एंड देन वी विल एंड. अप्लाई करने के लिए वेरी सिंपल, यू नीड टू सर्च. लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी को अगर डेवऑप्स में जॉब करनी है, लेट्स से, तो डेवऑप्स यहाँ डाल दो और यहाँ पर तुमको डालना है जॉब्स. नाउ हियर व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू सर्च फॉर जॉब्स. जॉब्स पे आप देखो यहाँ पे दिखा रहा है एक औरंगाबाद में आ गई है. अरे बाप रे, औरंगाबाद में लोग ढूंढ रहे हैं, वेरी रेयर. ठीक है, औरंगाबाद, अच्छा ही रिजल्ट औरंगाबाद आ गया ना, इसलिए मैं बोला औरंगाबाद किसके आ गया इधर. औरंगाबाद नहीं चाहिए, स्किप इट टू इंडिया, पूरा इंडिया में चाहिए मेरे को. यस, तो नाउ आई कैन सी कि भाई इसमें इंडिया रखा तो ही बेटर रहता है. इसमें तुमको रीसेंट नजर आते हैं, 14 घंटे पहले आई हुई है, देखो ये 1 हफ्ता पहले आई हुई है, 2 हफ्ता पहले आई हुई है, दो दो सॉरी 2 हफ्ता, 2 साल. ये अचानक ऊपर, ये शायद हो सकता पैसे भरा रहेगा, 2 साल पुरानी ऊपर आ गई, 2 days एगो एंड सो ऑन. तो लेट्स से ये वर्चूसा की जॉब है डेवऑप्स इंजीनियर करके. हाउ टू अप्लाई टू दिस जॉब. A lot of people do this mistake कि सीधा यहाँ से अप्लाई मार देते. This is the wrong approach to apply. The right approach is go and check the job description. यहाँ पर जाओ, जॉब डिस्क्रिप्शन देखो. ये अबाउट द जॉब को बोला जाता है जॉब डिस्क्रिप्शन. ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जितने पॉइंट्स है वो अपने रेज्यूमे में डालो. हो सके तो उठा के सीधा कॉपी पेस्ट मार दो, ये भी चलेगा. अगर बिल्कुल ही ऐदी है, लेजी है, नो प्रॉब्लम, इसको उठा के कॉपी पेस्ट मार दो. क्यों? क्योंकि जब तुम अप्लाई मारते ना, तो ये कीवर्ड को मैच करता. और यहाँ पे अगर तुमने सब कुछ डाल रखा है तो 100% मैच में ये तुम्हारा शॉर्टलिस्ट रेज्यूमे हो जाता. तो एक वन रेज्यूमे फिट्स ऑल, ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक है जो बहुत स्टूडेंट्स करते हैं कि एक ही रेज्यूमे हर जॉब पे जाके मार देते हैं. दिस इज अ बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू कैन डू. तुमका रेज्यूमे हर बार चेंज करना है जॉब के अकॉर्डिंग. जो जॉब दिखेंगी उसके अकॉर्डिंग ये चेंज करो और बनाओ. नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये देखो, यू हैव सीन द ब्राउजर दैट आई एम यूजिंग इज कॉमेट. ये है परप्लेक्सिटी का ब्राउजर. इसका बेनिफिट ये है कि इसके अंदर इनबिल्ट असिस्टेंट है और ये अभी फिलहाल फ्री में मिल रहा. इसका जो प्रो वर्जन है जो $20 पर मंथ है, ये अभी फ्री में मिल रहा. गो एंड डाउनलोड दिस परप्लेक्सिटी वाला कॉमेट. इसमें क्या है, तुमको परप्लेक्सिटी प्रो जो है वो फुकड़ में मिल जाता. तो ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे रखा है वर्चुसा की जॉब का, ये अपनी पेज रीड कर सकता. जैसा कि मैंने यहाँ पे डाला, कैन यू टेल मी, कैन यू describe what I'm seeing on my page. तो ये देखो, it has access to the page that I'm visiting. You have in LinkedIn job search page with a focus on DevOps roles in India. Search results for DevOps jobs, है ना, filters, virtual. देखो Virtusa, the main job highlight is with Virtusa DevOps engineer in Bangalore. देख रहा ना? Now I will tell create job profile points. Job profile points for the Virtusa DevOps job, which I can put on my resume.
these points should be according to the job description you can see on the page. ठीक है. Use strong action verbs. ये action verbs क्या है? Watch my YouTube video and you'll get the details कि action verbs क्या रहता है. It's very important your job profile has these action verbs. Keep tone natural and human like. ये बहुत इंपॉर्टेंट है देना, क्योंकि जो एआई का आउटपुट है ना, ये एचआर को भी मालूम रहता है एआई कैसे आउटपुट करता, और अच्छा नहीं लगता एआई वाला जो सेंटेंस है ना, वो अब दिखने में अब ये नहीं गया 2022 लेट 22 में जब चैट जीपीटी आया 23 24 में बहुत अच्छा लगा। अब 25 में ना वही एआई का घिसा पिटा आउटपुट है ना, किसी को अच्छा नहीं लग रहा। अब वैल्यू बढ़ गई ह्यूमन वाले आउटपुट की, तो इसलिए ये कीप टू नेचुरल ह्यूमन लाइक ये बहुत इंपॉर्टेंट है देना, ताकि वो थोड़ा सा अच्छे से अपने लिए बनाए। तो अब देखो यहाँ पे देख रहा, केयरफुली रेड द जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर वर्चुअल डेवऑप्स। ये दिस इज कॉल्ड एन एआई एजेंट। ये एजेंट मोड में चला गया, पूरा एनालाइज कर रहा क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और तुम्हारे लिए पूरा बना के देंगे। इट इज एनालाइजिंग नाउ। अब ये पूरा फ्री में अवेलेबल है, दिस इज नाउ फ्री अवेलेबल, कॉमेंट डाउनलोड मार लो। ये $20 पर मंथ में फुकड़ में मिल जा रहा है तुमको। आ गया देखो। Here are strong tailored job profile points for the Virtusa DevOps engineer position based directly on the job description from your LinkedIn page. आ गया, उठाओ कॉपी पेस्ट मारो रेज्यूमे में बिंदास। Engineered and maintain CI/CD pipelines using Jenkins, GitLab CI, and Azure DevOps to streamline development workflows and accelerate development cycles across multiple environments. बिल्कुल भी AI जैसा आउटपुट नहीं लग रहा है ना, जो टिपिकल चैट जीपीटी का आउटपुट आता है, इट्स नॉट लाइक दैट टिपिकल आउटपुट। व्हाई? बिकॉज जस्ट दिस प्रॉम्प्ट लास्ट लाइन कीप टोन नेचुरल एंड ह्यूमन लाइक उसने हटा दिया। एक और चीज है जो हम दे सकते, वो है योर IQ इज 130। इसको बताया था, इसका एक टर्म एक्चुअली मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। ये डालने से क्या हो जाता कि ये हेलुसिनेशन कम करता। AI डज लेस हेलुसिनेशंस एंड देन बिहेव्स लाइक अ ह्यूमन। तो ये IQ भी बोल सकते तुम कि भाई तेरा IQ बहुत हाई है, तो हाई IQ वाला इंसान है। then AI starts behaving like human and starts giving output more like human and not like AI। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्या है कि AI का AI टाइप आउटपुट का वैल्यू नहीं है, AI से ह्यूमन आउटपुट का बहुत वैल्यू है। तो नाउ दिस इज लाइक अ ह्यूमन लाइक आउटपुट, ये अब तुम अपने इसमें डाल सकते। तो ये AI को यूज़ करो, ये कॉमेंट ब्राउज़र काफ़ी बढ़िया है, इट्स फ्रीली अवेलेबल। ये बाद में है ना, ये कॉस्टिंग रहेगा, और इसका मतलब $20 पर मंथ रहने वाला है, तो साल का यू कैन जस्ट 12 × 2 यू कैन डू टू $40 के आसपास का तुमको फुकट में भी मिल रहा है। इट इज गिविंग परप्लेक्सिटी प्रो और एजेंट मोड। यू कैन सी दिस इज कॉल्ड एज एजेंट मोड। एजेंट मोड मिल रहा है तुमको, बना बनाया लिंक्डइन का पेज सर्च किया, सब किया, सॉ इट इज डूइंग RAG रैग्स, रैग इम्प्लीमेंट किया। दोस्तों नो नहीं मालूम तो कोई टेंशन नहीं है। तो इट डिड एजेंटिक वर्क एंड देन गिव दिस। तो ये है तरीका अप्लाई करने का, यूज दिस वे ऑफ अप्लाइंग। और बाद में क्या है, फिर HR को जाओ, HR को कनेक्ट करो, कनेक्ट करने के बाद बोलो कि ये जॉब है, वर्चुसा के HR को बोलो कि भाई ये जॉब है, उससे कनेक्ट करो, एंड वट एवर आई हैव शोन यू कैन यूटिलाइज दैट नॉलेज। नाउ अप्लाई हो गया, यस, यूज AI को यूज करो। कंटेंट क्रिएशन के लिए एक वेबसाइट है, अगर तुमको कंटेंट में आइडियाज नहीं आ रहे, शॉर्ट में बता देता मैं, आंसर सोक्रेटिस करके है, आंसर आंसर सोक्रेटिस। आंसर सोक्रेटिस पे तुम लोग अगर ये नहीं पता चल रहा कि कंटेंट किस चीज़ पे बनाऊं, तो यहाँ पे बस उस टॉपिक का नाम डाल दो। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से जूलॉजी है ना, समवन वाज फ्रॉम जूलॉजी, तो भाई जूलॉजी में क्या चल रहा है भाई इंडिया में, यहाँ इंडिया ले लो, एंड देन सर्च। तो ये बताना जूलॉजी में क्या क्या है, what are zoology and botany, what are zoology PDF notes, what are zoology jobs, which chapters are zoology in class 12। ये सब टॉपिक्स मिल गए, देखो इस पे बनाओ। अब ये टॉपिक उठाओ AI में डालो और बोलो कि भाई एक लिंक्डइन का पोस्ट बना दे, खत्म। तुमको टॉपिक नहीं ध्यान में आ रहे ना, ये देखो आंसर सोक्रेटिस। तो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ये आंसर सोक्रेटिस यूज करते पता करने के लिए कि भाई क्या, और ये आंसर सोक्रेटिस गूगल पे से उठा के बताता कि लोग क्या सर्च कर रहे। तो सब जो अभी लेटेस्ट सर्च किया जा रहा है यहाँ से तुमको टॉपिक मिल जाता। अरे सब AI का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अपना दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। लोगों ने दिमाग लगाया, तुम उसके ऊपर कुछ बनाओ, है ना, जिसने कुछ बना चुका उसके ऊपर कुछ बनाओ। ढूंढते मत बैठो आप क्या टॉपिक बनाओ। हाँ कुछ आता है माइंड में यूनिक टॉपिक, डेफिनेटली ओरिजिनलिटी इज ऑलवेज बेस्ट, लेकिन ये तो तुमको गूगल से की मैट्रिक्स निकाल के दे रहा ना, यूज इट। डेवऑप्स डालो, फलाना डालो, अमकाना डालो, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन पुट इट देयर, ठीक है, चलेगा। नाउ
I hope you found some valuable insights from this workshop. If you found the valuable something valuable, so I want your feedback. देखो, feedback is very important because it helps me grow. It helps me conduct more such workshops. It helps me improve these workshops. ये जो community workshops होते हैं, this is something that I do as a part of giving back to the community. कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह अपना सा बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चलता, लेकिन कुछ नॉलेज है जो मैंने एक्वायर किया. एंड जब डॉक्टर नाज़रीन मैडम से भी मैं आई मेट एट दैट टाइम, आई टोल्ड कि भाई जो भी मैं मेरे पास नॉलेज है, आई वुड लाइक टू शेयर विद पीपल अक्रॉस ऑल डोमेन्स एंड एवरीवन, कि भाई फ़ायदा हो सके, ह्यूमैनिटेरियन बेनिफिट. सो दैट्स द रीज़न वाई आई डू सच काइंड ऑफ वर्कशॉप्स. हमारे ऑफिस पे भी कम्युनिटी वर्कशॉप्स ऑलमोस्ट महीने में 1-2 बार होते रहते, विच इज़ फ्री फॉर एवरीवन. किसी के लिए नहीं, देयर इज़ नो मार्केटिंग देयर, नथिंग देयर. एवरीथिंग इज इट्स प्योरली बेस्ड ऑन वैल्यू प्रोपोजिशन, कि भाई आपको कुछ उससे बेनिफिट हो, आपको कुछ फ़ायदा हो. दैट्स द ओनली थिंग दैट इज देयर बिहाइंड दिस. सो योर फीडबैक मैटर्स टू मी, ताकि मैं और ऐसे वर्कशॉप्स कर पाऊँ जिससे हेल्प करो. जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत नॉलेज है, ज़रा ज़ुरा, उसके बेसिस पे मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ. तो ये फीडबैक आप लोग को डालना है मेरे लिंक्डइन पोस्ट पे. मैंने शेड्यूल कर रखा था एंड इट माइट बी हियर ऑन द लिंक्डइन इटसेल्फ. यू कैन सी सम पीपल इवन कमेंटेड. दिस इज द पोस्ट दैट आई पोस्टेड ऑन लिंक्डइन. तो आई वांट यू गाइस टू जस्ट राइट योर फीडबैक हियर. जो भी फीडबैक है, अच्छा बुरा जो भी है, भाई सर ने मेरा वीकेंड खराब कर दिए, चलेगा, पोस्ट दैट एज वेल, नो प्रॉब्लम. जेन्युइन फीडबैक चाहिए, ठीक है ना. अच्छा मैं जाता था खुलदाबाद में, मैंने प्लान छोड़ के सेशन अटेंड किया, नो प्रॉब्लम. और अगर अच्छा लगाऊंगा, वैल्यूएबल लगाऊंगा, तो वो भी डालो, और नहीं लगा तो वो भी डालो. इट्स ओपन. नाउ आई प्रॉमिस्ड यू वन थिंग एट द स्टार्ट कि भाई आई विल बी शेयरिंग एटीएस टेम्पलेट्स, है ना. आई प्रॉमिस्ड यू वन थिंग एंड आई विल बी कीपिंग माई प्रॉमिस. बट फॉर दैट प्रॉमिस आई नीड वन थिंग फ्रॉम यू, है ना. इट्स ऑलवेज अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप. तो मेरे को बस इतना चाहिए कि यू शुड गिव अ फीडबैक. जस्ट शेयर अ फीडबैक एंड देन मैसेज मी ऑन लिंक्डइन, और या फिर कोई भी मेरे सोशल मीडिया पे आप मैसेज कर सकते हैं, या मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते. यू कैन फाइंड माई नंबर ऑन माई प्रोफाइल इटसेल्फ. Share your feedback and then tell me, just message me regarding the templates, and I will share you here on LinkedIn itself. So it will actually help me know that you attended my workshop, और LinkedIn पे हम आगे communicate भी कर पाएंगे. तो you need to mention your feedback here in the comment section. Comment section में जाना है, feedback देना है as a comment. You will write your feedback as a comment. अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी लगा, and then message me. Please share the ATS templates, and I will be sharing ATS templates individually. I'm not sharing in the group here itself or in the chat here itself, because I want to share the templates only with those who are serious. Unnecessary बांटने का reason नहीं है. So I'm not charging you anything. हाँ, हमने पे करके खरीदा है, but we want to give it free to you. We want everyone to use that ATS templates. But the only thing that I require is a genuine feedback. ऐसा नहीं कि सर अच्छा लिखे तो सर देंगे, नहीं. Even if you write a bad feedback, if you felt bad and you write a bad feedback, still if you ask, still I will give, because I want to know the reality कि भाई कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा, ठीक है, चलेगा. So on that note, I would like to end. A huge thank you to IRC and Dr. Nazneen madam and her team for arranging this session. It's a good approach that IRC has taken, and the things are happening under Nazneen ma'am. Yes, thank you very much. And on that note, I would like to end my session. Over to you, Nazneen ma'am. Thank you so much, sir, for such an insightful session. It was indeed a value you have provided, and such values are called as gold mines. You have shared gold mine from your experience with our students, and LinkedIn is such a platform where people can get jobs, get connections, get a wholesome network from where they can benefit. So thank you so much, sir, for spending your weekend. While you suggested that maybe the students are somebody may be feeling they didn't go to Ahmedabad for a cup of tea, but you have spent your weekend with us, giving such a valuable session for our students. And definitely at IRC, we want our community, in fact, everybody, to benefit from the efforts we are taking, and you have cooperated and given such a great insight for us. It was indeed a very, very insightful session. Thank you so very much. Students, I really appreciate your patience, your participation. Aska, I really appreciate you shared your participation. Sir, जो वो आवेर सौदागर है, वो present है इस वक्त सेमिनार में, और उन्होंने ही आपको लिंक भेजा है directly from session itself. That's the impact of what you have created on your audience. And
at IRC. We feel blessed to get connected, and we look forward for more such sessions from you, because that was definitely very beneficial. Thank you so much. अजान हो रही है तो शायद नमाज का वक्त हो रहा है, तो फिर then we need to end. Sir, thank you for spending such a useful time with us. Thank you so much, sir. Thank you, students. At IRC, I personally thank everybody.